Good afternoon, everyone. I welcome you all for the session, which is very interesting, and LLP, which is touching new heights daily. And in our current scenario, everybody wants to know exactly the situation about the status about the LLPs. For this, I like to request Jalesh Bhaiti sir, Akola branch chairman, to give the opening remarks for this session. Thank you, Kiran. I, C.A. Jalaj Baiti, Chairman of Akola branch of WIRC, on behalf of Akola branch, Ahmednagar branch, and Amravati branch, welcome both our learned speaker today. First, the Ram Thakkar sir from Akola and Prasad Bhandari sir from Ahmednagar. The topic of today's discussion is all about LLP. We are going to discuss LLP in thoroughly with respect to how registration, critical aspects, issues, and taxation matter also. Normally क्या होता है LLP में हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं क्लाइंट्स को. We go for partnership or we go for companies. LLP के अंदर में we as a professional ourselves are not comfortable because of we are not aware of basic some rules regulations, और ऐसा लगता है कि बहुत there are many compliance formalities which if we don't do in time there are much fines involved in it. But LLP is a partnership in which some or all partners have limited liability. It therefore can exhibit element of partnership as well as companies. In an LLP, each partner is not responsible or liable for other partners' misconduct, negligence, which is the most important part, which is not in Partnership Act. To understand what are the benefits of LLP, why we should come to LLP, we have today's learned speaker with us, Ram Thakkar sir, as well as Prasad Bhandari sir. To introduce our today's first speaker, Shri Ram Thakkar sir, I request Ahmednagar Chairman Kiran Bhandari sir to please give his introduction. Thank you, sir. Thank you. Today I got the opportunity to introduce the faculty for today's session, Ram Thakkar sir. Ram Thakkar sir is founder of Ram Thakkar and Associates, and he is practicing since 2002. He is also associated to Ram and Ram Consultant LLP. He is a fellow company secretary, LLP, and insolvency professional. His area of practice is company law, LLP, IBC, and intellectual properties, specifically in trademark and rights, NCLT, and High Court matters relating to law and trade, company law and trademark. His special interest is mediation and arbitration. And after having a chat with him, I'm very much confident that today's session will be very much learning and with communication. Now I request Pawan Jaju sir to give the introduction of Prasad Bhandari sir, who is also our today's speaker, who will give the insights relating to income tax for LLP. Thank you, Kiran sir. Yes. Thank you, sir. I, C.A. Pawan Jaju, Secretary, Amravati branch of WIRC of ICI, on behalf of AAA, Amravati, Akola and Ahmednagar branch. It's my privilege to introduce C.A. Prasad Subhash Bhandari sir. He has done MCom FCA. He is practicing chartered accountant in Ahmednagar, Pune since 2005 with the firm name P.S. Bhandari and Associates. He is also director and a teaching faculty in Desarda Bhandari Professional Academy Private Limited, a pioneer in CA coaching in Ahmednagar. He has teaching experience of more than 15 years. His special achievements include he was the youngest chairman of Ahmednagar branch of WIRC of ICI for the year 17-18. He was awarded with the degree of Eklavya by Bhishma Pitama of Income Tax CA Dr. Girish Ahuja sir. He has made record for 3 times of teaching the subject direct taxes for continuous 15 hours, and recently he has broken his all the earlier records by teaching income tax continuously for 18 hours. That's a great achievement, sir. He has written the study material of direct taxes for the students of intermediate and final of a CA course of Bhutan on behalf of ICI. He also reviewed important topics in the study material of direct taxes for final students of ICI.
He also reviewed an important topic of tax audit in the study material of advanced auditing for final students of ICAI. He has completed 2 years study of MCOM in 1 year only. He is online coaching faculty for direct taxes. He was selected as one of the icons of Ahmednagar by Lokmat newspaper among 27 icons. He was elected as the vice chairman of Ahmednagar branch in 1617. Also elected as chairman of Vikas of Ahmednagar branch for the year 1617. Works as treasurer of Ahmednagar. Attachment with various other organizations. He has been reappointed on the advisory board of Ahmednagar Urban Cooperative Bank, director in Sachin Super Private Limited, Paitan. His other contribution includes regularly delivering lectures on direct taxes at many branches of WRC like Baroda, Mumbai, Pune, Aurangabad, Thane for more than 10 years. Regularly delivering the CP lectures for the chartered accountants in seminars arranged by WRC of ICAI. He has also a social connection. He is using cycle on every Saturday and promoting the use of cycle among the members and students. With this a big introduction, I welcome CA Bhandari sir. I welcome you all. Over to Kiran sir. Yes. Today's session will start with Ram sir. Now I request if any issue relating to the taxation come, then Prasad sir will guide us, and after Ram sir's session, we'll take Prasad sir's session, and thereafter the question answers relating to the members. Now I request Ram sir to take over the charge for the today's session, sir. Yeah. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yeah. First of all, I am very much thankful to ICAI, Akola branch and Amravati branch and Ahmednagar branch for giving me the opportunity to speak to all of you on the one of the favorite topic of mine. I don't know how far I am. I know this topic very well, but I like this topic very much. So giving me this opportunity, I am very much thankful. I am honored to be a co-speaker with CA Prasad sir. That the introduction, which what I heard is just the imbalance between the speaker, I can say, but I am honored to be. If you are working with a person who is so eminent, but that person is in your side, then it's a strength. So he is in my side, my side of the table, opposite to the audience. So I am thankful to him. मुझे ऐसा लगता है कि 2020 मैच में जैसा बॉलर बहुत फास्ट होने वाले हो तो नाइट वॉचमैन को पहले भेजा जाता है so that वो कुछ चौका छक्का नहीं मारे तो पीछे बैकअप में अच्छे प्लेयर्स है. So I am having a backup plan with me. So taking in that way, I take this topic forward. As far as this LLP is concerned, no doubt it's a old topic. That is a 2008 law, which is passed in the year 2009. That is 31st March 2009 में ये एक्ट पास हुआ है. फिर भी अभी काफी कुछ LLPs के बारे में क्लाइंट को, इन जनरल प्रोफेशनल्स को तो हम लोगों को नोशंस काफी क्लियर हो गए हैं, पर क्लाइंट्स में या इन जनरल पब्लिक में काफी कुछ एक अवेयरनेस का फर्क आ रहा है. तो क्यों ना ऐसा टॉपिक को इस तरह से डील किया जाए कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ लॉ को डील किया जाए, सो दैट हम ये भी प्रिडिक्ट कर सके कि कौन से सिचुएशंस में हमने LLP सजेस्ट करना है, कौन से सिचुएशंस में कंपनी सजेस्ट करना है, और LLP अगर वो सिचुएशंस में कितना सुटेबल होगा, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना टैक्स एफिशिएंट होगा, या मैनेजमेंट ओनरशिप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ठीक ढंग से होगा. तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं उस एंगल से उसको लेके जाऊँ. Kiran sir, shall I start my presentation? Can I share my screen? Yes, sir. Yes, sir. I hope screen दिख रहा है सर. Yes, sir. Perfect, sir. Full screen, sir. Perfect. तो वीडियो ऑफ करोगे सर, उससे कुछ क्वालिटी फर्क पड़ेगा? जरूरत है? नहीं, No, sir. Not at all. No issue, sir. Okay. अगर आपको नेट में डिस्टर्बेंस आता है तो कीजिएगा सर, नहीं तो चलने दीजिए. Okay, great. So let me introduce a brief story about an LLP. That is, it started in the year it started from 31st March 2009 with a very small piece of legislation. It has only 81 sections, 1 rule, 4 schedules, not more than 20 to 25 notifications and circulars. तो इतना हम्बल स्टार्टिंग होने के बाद अभी तक
जैसे टेक ऑफ होना चाहिए कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी भी एलएलपी जो है वो उस वे से टेक ऑफ नहीं हुआ। क्या रीजंस है वो भी हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने जाएंगे। और अभी एलएलपी एक्ट में तो उतने फेवरेबल प्रोविजंस नहीं है, पर कंपनीज एक्ट में काफी रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस 2013 के कारण आ गए हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड को भी सारी पब्लिक लिमिटेड की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गई है। सो देयर इज अ कांसेप्ट गोइंग ऑन व्हिच माइट हैव बीन न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पब्लिक लिमिटेड पेन। तो ये पेन से निजात दिलाने के लिए वन में सजेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एन एलएलपी। साइमल्टेनियसली द पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नो डाउट लिटिल बिट ऑनलाइन हो चुका है, बट यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर को देखते हुए शायद कोई पार्टनरशिप फर्म भी सोच सके कि यार हाँ मुझे कंपनी में स्विच ओवर होना है, तो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, दिस व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, सो मुझे लगे कि ये स्लाइड से मैं शुरू करूँ। मुझे संस्कृत आती नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग मेटिकुलसली व्हाट इज रिटन ऑन माय स्क्रीन। आई जस्ट कन्वे द मैसेज ऑफ इट। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवते। So what is going on right now? I hope everybody be happy, everybody be having a good health, and nobody should have a pain in their life. I have bifurcated this topic into a six index. That is one by one हम उस टॉपिक को चलते हैं, so that हम उस टॉपिक को क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए एंड करेंगे। सो आई फर्स्ट मेक इट बेसिक कंसेप्ट, कंपनी के एलएलपी के बेसिक फीचर्स क्या है। नो डाउट थोड़ा सा आपको बुकिश लगेगा, या 11-12 का कुछ सिलेबस याद आएगा। कुछ फॉर्मेशंस की प्रोसीजर, काफी लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो फॉर्मेशन करते भी होंगे, या तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाता है। जो अगर कोई फ्रेशर्स है वो इस प्रोसेस को देखेंगे तो काफी सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसेस है सब कुछ। कंप्लायंसेस एनुअली क्या इन्वॉल्व है वो भी हम लोग देखेंगे। साल में सिर्फ 2 ही रिटर्न्स है और कुछ इवेंचुअली रिटर्न्स है, उसको भी हम लोग देखेंगे। Then we'll compare this LLP with the different structure, that is in partnership firm and private limited company. Then we'll convert, once we find it, yes, these are the advantage position, we'll convert this company or a firm into an LLP. Then there are certain miscellaneous provisions. We'll also have a view of it, how this LLP Act भले 81 सेक्शन दिखता है, but कितना वो versatile और काफी सारी चीजों को वो कवर करता है। कुछ क्रिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व है जो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण शायद एलएलपी टेक ऑफ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे, वो भी थोड़े इश्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देन सो as far as LLP structure is concerned, it is an alternative concept. It is alternative corporate business model, जिसमें हाइब्रिड होता है, कंपनी के भी फीचर्स एज वेल एज एलएलपी के भी, कंपनी के भी फीचर्स और पार्टनरशिप के दोनों के फीचर्स। इट हैज अ सिंग, दैट इज कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी it take up, and as far as partnership is concerned, it take it a flexibility. Why is a flexibility? That is the LLP whole runs around the agreement, LLP agreement. बहुत कुछ किया जा सकता है LLP agreement के साथ में। तो LLP agreement में हम क्या-क्या चीजें ड्राफ्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो पूरा के पूरा फ्लेक्सिबल बने। So it has a flexibility feature as well as it has a limited liability feature. So we call as a hybrid combination of both of it, taking advantage of one and enjoying the second thing. As we discussed, it is a small legislation, 81 section, 4 schedule, and rules. There are 41 rules. If somebody wants to start this small act, it can be just finished in 4-5 days. Nothing special. No much rule for interpretation की भी बहुत जरूरत नहीं है, काफी कुछ procedurally rule में clear cut दिया हुआ है। It has a body corporate structure, that is the partners are different as well as the LLP is different. Now, no doubt, this is seems to be a book. एक 11-12 का कंसेप्ट दिखता है कि LLP is a body corporate, but practically ये लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होता है मैं आपको जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। Consider Mr. A and Mr. B is having a partnership firm and they are having a PWD license. Partnership firm को PWD का लाइसेंस मिल गया, and thereafter they both went to one function or one program, and they both died in an accident. Now, once they died in an accident, what happens to that firm? As we know about a partnership firm, do not have the separate legal existence apart from the partners. तो क्योंकि दोनों का डेथ हो चुका है, हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे। और what would happen to that PWD license? Will that PWD license be transferred to the legal heirs of the partners? The answer is no, because the license went away with the firm and firm went away with the partner.
So now there is an importance that LLP being a body corporate, it has that importance. Then any change in the partnership of LLP shall not affect the existence. Partner may come, partner may go, correct? But the LLP will go and on and on. So that is what the Companies Act old saying, it's a perpetual succession. Partnership Act 1932 provision shall not be applicable. Totally LLP is a separate act, no doubt. Companies Act के कुछ provisions भले ही लग जाएंगे, पर Partnership Act की कोई भी provision इन चीजों को नहीं लगती है. Then, as far as liability is concerned, we all know that that is the liability is limited. Now, what is a limited? It's an agreed contribution. जैसे हमारे Companies Act में there is a concept of authorized capital and there is a concept of a paid up capital. And once I subscribe to the paid up capital, my liability will be the unpaid value of the shares. Unpaid value of the shares. So in this case, what is the liability? What is the liability as far as partner is concerned? जो भी contribution उन्होंने agree किया होगा LLP agreement में, उतना उनका liability है. यहाँ पे एक feature है कि whether a partner is an agent of a LLP or whether a partner is an agent of another partner. I repeat, whether a partner is an agent of an LLP or whether a partner is an agent of other partner. So as far as law says, कि partner is an agent of LLP, not the partner of other partner. That means अगर एक पार्टनर उसके वर्किंग कैपेसिटी में कुछ रॉन्ग करता है तो दूसरे पार्टनर का कोई लाइबिलिटी उसमें नहीं आएगा. सो अ पार्टनर एज पार्टनर इज नॉट अ एजेंट ऑफ द पार्टनर, automatically his liability is get shielded and there is no concept of a joint liability over there. It's only the partner will be responsible for self wrong, not the partner is responsible for the wrong of an other person. Consider a partner has given a personal guarantee. बहुत बार loans LLP लेती है, कंपनीज लेती है, तो वहां पे पर्सनल गारंटीज दिया जाता है. तो अगर पार्टनर ने पर्सनल गारंटीज दिया होगा तो नो डाउट देन इन दैट केस द लायबिलिटी वुड बी अनलिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द लोन, बट अदरवाइज लायबिलिटी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी. Next, borrowings and investment on its own name. No doubt it seems to be a very simple feature, but जो भी assets अगर LLP की खुद के नाम पे है तो हम बोलेंगे कि yes वो LLP की assets है और liability भी LLP की है. In comparing to a partnership firm wherein if you want to purchase a land, that land is considered as a joint property of all the partners. Whatever जितने भी partners हैं उनकी joint property मानी जाती है और LLP के केस में वो माना जाता है कि वो LLP की है. तो अगर पार्टनरशिप फर्म की अगर लैंड को किसी को सेल करना है, सो एज इट्स अ जॉइंट प्रॉपर्टी इट मे रिक्वायर्ड अ सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ठीक है ना. और समटाइम्स पार्टनर्स में रिलेशंस हॉस्टाइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं बहुत लंबा समय पार्टनरशिप चलने पे, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया उसका लीगल हेयर सिग्नेचर नहीं देगा, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा हो सकता है. बट इफ इट इज अ केस ऑफ LLP will be run by a designated partner or an active partner, so the property can be sold off by those signatures, not by required the signature of all. And if there is a dispute, you can go with a meeting and there is a concept of a majority. So majority से decision pass हो सकता है और majority से decision से land sale का proposal pass हो सकता है. तो individual partner cannot stop the LLP from doing a business wherein normal traditional partnership can do it. Then simplified compliances. बहुत सारे compliances जो हम company law में अभी देखते हैं वो बहुत strict है. कभी-कभी तो वो सारे compliances को देख के हमारा business करना difficult हो जाता है. उस कंपैरिजन में LLP में काफी सिंपल कंप्लायंसेस है. कोई मैंडेटरी ऑडिट नहीं है जब तक एक पर्टिकुलर टर्नओवर या पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन हम पहुंचते नहीं है तब तक के ऑडिट भी कंपलसरी नहीं है. देन देयर इज नो अपर सीलिंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स. ये भी एक बड़ा यूनिक फीचर है कि LLP में पार्टनरशिप में देयर इज अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 50 व्हिच इज मेंशन्ड अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 464. एंड इन केस ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम शेयर होल्डिंग इज 200. And if you want to go beyond is a public limited. So somebody wants to have a partner, say 1,000 partners. So LLP is only option by which it can form that organization. So there is no maximum number of the partners to that LLP. Right and duties of the partners are governed by LLP. ये बड़ा important point है कि जब भी partnership agreement हम draft करें, बहुत सारी creativity करने का scope हमको यहाँ पे agreement से आता है. जैसे हम article of association में अगर वो स्टीरियोटाइप या स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड ना हो तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारी प्रोविजंस ड्राफ्ट करते रहते हैं अभी, क्योंकि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एंट्रेंचमेंट. सेक्शन 13 अलाउ करता है कंपनीज एक्ट का कि वी कैन हैव एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. ठीक है. सो पर्टिकुलर डिसीजन में ज्यादा मेजॉरिटी से पास करना चाहता हूं अदर देन स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आई कैन डू एंट्रेंचमेंट. सेम सिचुएशन आई कैन ड्राफ्ट
एवरीथिंग इन दिस LLP एग्रीमेंट. अपन LLP के चैप्टर में डिटेल से अलग से जाएंगे जब देखेंगे कि बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे कुछ काम करने का. गवर्नमेंट हैज पास अ नोटिफिकेशन दैट कुछ कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस जो है वो LLP को लगेगी. ठीक है, तो दैट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस. सेक्शन 460 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट है जो LLP को लगा है, तो अपन देखेंगे उसका इम्प्लीकेशन क्या है. Who can be a partner? An individual can be a partner or a body corporate. So a body corporate, that means a company or an LLP. ठीक है, these can be a partners. Exception है, these cannot be a partner. HUF cannot be a partner. A trust cannot be a partner. A cooperative society or a minor cannot be a partner. If I compare this four disabled person, तो मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है जो 1932 में रजिस्टर्ड होती है, वहाँ पे HUF पार्टनर हम कॉमनली बना देते हैं, तो वहाँ पे HUF बनता है पर LLP में नहीं बनेगा. ट्रस्ट को भी हम पार्टनर बना देते हैं पर यहाँ पे वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इसलिए नहीं होगा. एक सर्कुलर है 1967 का है, बहुत पुराना, उसमें उसने बोला है कि ट्रस्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर. साइमल्टेनियसली ट्रस्टीज कैन बी अ पार्टनर बट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉट एज अ ट्रस्टी की कैपेसिटी में नहीं होगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक सर्कुलर है. और माइनर, थोड़ा सरप्राइज है माइनर के लिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में a minor can be a shareholder provided it is a fully paid shares. एक नंदिता जैन वर्सेस बेनिथ कोलमन का टाइम्स ऑफ इंडिया का केस है, जिसके बेसिस पे माइनर कैन बी a shareholder provided आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन allows to have minor as a shareholder of fully paid up है. तो बट यहाँ पे LLP में ये चारों को डिस्क्वालिफाइड किया है, ये चारों ही पार्टनर्स नहीं हो सकते. Then there are certain businesses which are allowed and certain businesses which are not allowed. These businesses are not allowed can run only profit making activities. कंपनीज एक्ट में आपने शायद वर्किंग किया होगा, सेक्शन 8 आजकल बड़ा वो में है CSR की वजह से. तो सेक्शन 8 बनाते हैं लोग नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए, पर LLP कैन नॉट बी मेड फॉर नॉन प्रॉफिट, इट कैन बी ओनली मेड फॉर प्रॉफिट एज द पार्टनरशिप. LLP कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज का क्लैरिफिकेशन आया था, तो दिस इज एन एंटाइटल्ड बिजनेस व्हिच कैन बी देयर. यू कैन मेक एन LLP with some other objective, example कुछ ट्रेडिंग वगैरह, and you can do an investment activity out of this. बहुत बार अपने को होता है, अभी आज एक आप लोग भी जब काम करते होंगे तो ग्रुप कंपनी में एक सेक्शन बड़ा डिफिकल्ट कर दे रहा है आजकल, सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि एक कंपनी दूसरे को लोन देगी और दोनों में कॉमन डायरेक्टर है, तो ये सेक्शन हमको रिस्ट्रिक्ट कर देता है. तो जनरली लोग मीडियम जो ले लेते हैं वो LLP का मीडियम ले लेते हैं कि वो कंपनी LLP को लोन देंगी और LLP उस दूसरे कंपनी को लोन देंगी. So such type of for this in LLP के लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, ये बोरोइंग एक्टिविटी होगी. तो LLP कैन डू दिस प्रोवाइडेड उसका 50-50 का टेस्ट RBI से पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज विल बिकम एन NBFC. And if it is an NBFC, RBI doesn't allow an LLP to have NBFC activity. Just ये ख्याल में रखना है. So LLP can do an investment activity provided its income shall not more than 50% of the total income. That is what. Then LLP can take a profession like CA, CS, CW or architect. There are certain जो respective laws हमारे बने हुए हैं CA, CS, CW और architect के, वो laws में respective amendments ला लिया और उस amendments के कारण हम आज ये काम कर सकते हैं. In fact, it can do both attestation और non-attestation services भी कर सकते हैं. Then this concept is also having unlimited liability for the fraud. If the LLP has been made to do a fraud with creditor, so liability would be unlimited. Then there is a concept of holding out partner. Holding out partner, that is, if I am not a partner in firm and I am showing it as a partner, I repeat, if I am not a partner in one firm and I am showing it as a partner, I would be a partner under this concept. Concept of a whistleblowing provision है कि अगर मेरे पार्टनर्स में अगर कुछ फ्रॉड चल रहा है और कोई पार्टनर अथॉरिटी को जाके कंप्लेंट करता है तो वो विसल ब्लोअर कहा जाएगा, उसको कुछ सेफगार्ड्स अवेलेबल है. देन देयर कुड बी एन इन्वेस्टिगेशन. अगर LLP में फ्रॉड हो रहा है या मैनेजमेंट डिस्प्यूट है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, तो कोई पार्टनर ROC में जाके इन्वेस्टिगेशन लगा सकता है. देन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन. ठीक है ना, so there could be a amalgamation of 2 LLP into 1 LLP or a compromise with the creditor. These are the detailed provision. Winding up, no doubt now this has been shifted to IBC, but law में ये सारा provision है. LLP as a strike off भी कर सकते then for an LLP. So this act, even though it's a small act, covers many a thing. That is what we say discuss here. Then अब मुझे एक चीज ये स्लाइड शेयर करने से पहले मुझे ऐसा लगा, स्लाइड जब शेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि
जिनसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको बहुत सारी चीजें तो पता ही है जो मैं ये स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्यों ना ऐसा कुछ अपन डिस्कस करें जिससे अपने को एक रिफ्रेशमेंट हो प्रैक्टिकल के लिए कि कौन से सिचुएशंस में एलएलपी सुटेबल है। तो मुझे जो मेरे माइंड को लिमिट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ माय नॉलेज, मुझे लगता है कि इन 8 सिचुएशंस में या 8 एस्पेक्ट ऐसे जो ध्यान में रखने चाहिए जहाँ पे एलएलपी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सुटेबल है। पहला, दैट इज अ रियल एस्टेट बिजनेस और अदर बिजनेस वेयर कैपिटल नीड टू बी विथड्रॉल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। अगर रियल एस्टेट बिजनेस है तो आपको, जैसे हम लोग एक एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद में जब वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो ह्यूज प्रॉफिट्स आ जाते हैं। ये जो ह्यूज प्रॉफिट्स आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर वो कंपनी में करेंगे इन केस, तो कंपनी में क्या सिचुएशन हो सकता है कि कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी और उसके बाद डिविडेंड बांटेगी, और अभी 1 अप्रैल 2020 के बाद the dividend will be taxable in the hands of the recipient. कंसिडर कीजिए मेरे रेसिपेंट 30% के टैक्स स्लैब में हो तो कंपनी भी 25 भर देगी और रेसिपेंट भी 30% भरेगा, तो हैवी टैक्सेशन जाता है। फर्दर डिविडेंड के अलावा अगर मैं बायबैक में जाता हूं तो बायबैक में अलग लिमिटेशन है। बायबैक कैन बी डन ओनली विद द 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। उससे ज्यादा अगर मुझे जाना है तो देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल दैट रिक्वायर्ड एनसीएलटी अप्रूवल। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए मुझे लगता है रियल एस्टेट बिजनेस में जब ह्यूज प्रॉफिट आता है, अगर वो एलएलपी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है तो एलएलपी में आप अपना कैपिटल प्लस आपका प्रॉफिट कोई भी लेवल पे विड्रॉ कर सकते हो। देयर इज नो मच लिमिट टू इट। देन नेक्स्ट हो सकता है कि कोई चाहता हो कि पार्टनरशिप डीड में एनफोर्समेंट होना चाहिए, बट पार्टनरशिप डीड कॉन्फिडेंशियल भी होनी चाहिए मेरी, है ना। पार्टनरशिप डीड में एनफोर्समेंट भी होना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए। तो एलएलपी एग्रीमेंट सुटेबल है क्योंकि पार्टनरशिप जो भी एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एलएलपी एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म नंबर 3 के साथ 30 डेज में फाइल करना है। तो अगर मैं किसी रजिस्ट्रार के पास कोई डॉक्यूमेंट देता हूं तो उसका एनफोर्समेंट बढ़ जाता है। साइमल्टेनियसली ये डॉक्यूमेंट पब्लिक को अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन नहीं है। आई रिपीट, पब्लिक को अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन नहीं है। तो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मतलब फुलफिल हो गई और मेरा एनफोर्समेंट भी हो गया। तो डुअल अगर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे मैं ये एलएलपी की तरफ सोच सकता हूँ। वही कंपनीज के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मेरा पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट बनने से मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी डॉक्यूमेंट जो भी चीज लिखता हूँ वो आम पब्लिक में पता चल जाता है। अगर मैं कोई एसएचए करता हूँ, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट करता हूँ, तो देयर आर सर्टेन रूलिंग्स। वो बोलते हैं एसएचए की सारी प्रोविजंस आप आर्टिकल में डालिए और आर्टिकल को आप आरओसी में डालेंगे जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, तो आपके इंटरनल अरेंजमेंट्स, आई रिपीट, इंटरनल अरेंजमेंट पब्लिक में चली जाएंगी। तो यहाँ पे वो पब्लिक में नहीं जाके वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कंपनीज हैविंग ह्यूज रिजर्व्स, बहुत बार हमने देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोग सैलरीज नहीं उठाते हैं, प्रॉफिट रिजर्व्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि बिजनेस का नीड ऐसा है कि कैश विड्रॉल चलेगा नहीं, कैश विड्रॉल नहीं कर पाते क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन हर साल करते हैं। पर एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे बिजनेस जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है। अब आपको उसमें से पैसा बाहर निकालने का है। जब आप निकालोगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा तो वंस अगेन यू विल पे द टैक्स एज पर दी सिचुएशन जो भी रेसिपेंट है उसके टैक्स रेट से। सो क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए, और कन्वर्जन के बाद प्रसाद सर अपने को डिस्कस करेंगे कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशन पीरियड। उसके बाद अगर हम रिजर्व्स को एलएलपी कन्वर्ट करने के बाद रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शायद टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस इज अ सिचुएशन वेयरइन somebody can guide conversion of company into LLP. बिजनेस विच नीड्स लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, जिसका लायबिलिटी लिमिटेड करना है मुझे, और मुझे आउटसाइड फंड्स भी चाहिए। अभी बहुत बार फंड्स का जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, बाहर से फंड्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बैंक लोन और अ शेयर होल्डर्स अनसिक्योर्ड लोन इन अ टिपिकल सिचुएशन। पर मुझे अगर बाहर के फंड्स चाहिए तो डिपॉजिट के रूल काफी स्ट्रिंजेंट है एंड द पेनल्टी इज ह्यूज। 1 करोड़ से 10 करोड़ का पेनल्टी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। तो अगर आउटसाइड फंड मुझे चाहिए तो मैं एलएलपी फॉर्म करूंगा। एलएलपी में मैं बाहर से फंड्स ले सकता हूं बिकॉज एज ऑफ टुडे LLP do not have any restriction as the similar restriction which the Companies Act is having under section 73 to 76, ठीक है। और रूल्स में जो restrictions है ये सारे कोई रूल्स LLPs को लगते नहीं है। So if I want to have a limited liability और public fund मुझे चाहिए तो मैं LLP की तरफ जा सकता हूँ। Then if I want to hold some asset jointly, है ना, 2 या 4 लोग मिलके मैं assets होल्ड करना चाहते हैं, यूज जमीन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जब मैं बेचूं
तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि वो भाई 10 लोग हैं तो 10 का मेरे को कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं, 10 में से 7 लोग भी हाँ बोलेंगे तो मैं बेच सकूंगा। तो एलएलपी इज अ बेटर कॉम्बिनेशन बिकॉज एलएलपी की असेट एलएलपी के नाम पे होंगी और सेल डीड जब करेंगे, जब बेचेंगे तो 7 लोग या उसमें से कोई ऑथराइज्ड पर्सन उसको बेच सकता है। देन आई नीड अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एज फार एज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसर्न, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए मेरे को फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर करना है तो मैं एलएलपी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन आप लोगों को भी क्वेश्चन क्लाइंट का आता होगा कि उसने एक प्राइवेट क्लाइंट ने एक प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, उसका ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है और सी प्रोजेक्ट है। ए प्रोजेक्ट के लिए वो एक्स के साथ एसोसिएट होना चाहता है, बी के लिए वाई के साथ एसोसिएट होना चाहता है और सी के साथ जेड के साथ एसोसिएट होना चाहता है। तो वो बोलेगा कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो अपन बोलेंगे कि कैसे करोगे? तो बोलेगा मैं एक XYZ को शेयर होल्डर बना देता हूँ। अगर XYZ को आप शेयर होल्डर बनाओगे तो ये सारे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली एक दूसरे का राइट एक दूसरे के साथ आ जाएगा, करेक्ट। बट अगर मैं एलएलपी करता हूँ और एलएलपी में मैं ड्राफ्ट करता हूँ ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट और लिखता हूँ ए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एक्स के साथ इतना परसेंटेज, बी का वाई के साथ और जेड का सी का जेड के साथ, सो सीम्स टू बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एलएलपी में अपन कर सकेंगे। टैक्स एस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे टैक्स को लेके भी एलएलपी बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि इज अ प्रूवन थिंग। जो भी एलएलपी का असेसमेंट होगा, टैक्स असेसमेंट विच इज सिमिलर टू द पार्टनरशिप, सो टैक्स इज वन ऑफ द एस्पेक्ट more suitable for investment venture where investor do not want to have manage and expertise. Somebody consider a case ke if I want to start a partnership firm and my investment in the partnership firm is say 50 lakh rupees, मैं छोटा सा ऑयल मिल डालना चाहता हूँ और एक 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैं मेरे आज फ्रेंड जो बने हैं प्रसाद सर को, उनको बोलता हूँ कि सर आप भी मेरे इस वेंचर में पार्टनर बनिए, विल फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म wherein you pay only ₹1. You are my good luck, so you pay ₹1 only and I will pay the rest of it and we'll make a partnership deal and register under Action Act 1932. Now consider if this is a case wherein Prasad sir will take that decision whether to invest ₹1 or not. He may invest ₹1 in my partnership firm, but as he do not have control on my this business, liability will be unlimited. So in that case, he will ask me to go with LLP and then he will invest ₹1 so that his liability should be limited to ₹1 only. So these are more suitable for investment venture as such. So these are the cases wherein LLP structure is more suitable. Jalak sir, my speed is okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next is sir. Can you explain, sir? Whether partnership when the partnership should be converted to LLP or what? Yeah, sir, we are having that comparison. जब हम comparison करेंगे partnership और LLP का, है ना, advantage और disadvantage, तो उस moment पे ये वाला topic अपन discuss करते हैं किरण सर। Yes, sir. Yes. Okay. Thanks for somebody is listening to you. That is more important right now. Online, we don't know whether somebody is listening or not. Thanks for keeping with me, sir. Then no sir, all are with your space, no issue sir. Thank you sir. So देखिए फॉर्मेशन बहुत सिंपल स्टेप है। MCA बहुत लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं या जो लोग करना चाहेंगे वो सिंपल एक MCA का वेबसाइट है, उसमें आप जब कंपनी LLP फॉर्म करना चाहेंगे तो सिंपल प्रोसेस है। जब आप LLP फॉर्म करेंगे तो अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नया LLP फॉर्म कर सकते हो या तो कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो ऐसे 4 ऑप्शंस हमारे को LLP फॉर्मेशन में आएंगे। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं कि यस LLP आपने फॉर्म करना चाहिए, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन आ सकता है। स्पेसिफिक पार्टीज का अरेंजमेंट क्या है, वेदर इट्स अ फैमिली कंसर्न और नॉट। जनरली अपन एडवाइस करते हैं कि अगर फैमिली कंसर्न है तो LLP से भी बेटर है पार्टनरशिप फॉर्म, सीधा पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि फैमिली कंसर्न में लाइबिलिटी का कंसर्न नहीं रहता, लाइबिलिटी अनलिमिटेड लिमिटेड भी आई या अनलिमिटेड भी आई तो सबको मिलके भरना रहता है। सो वेदर इट्स अ फैमिली कंसर्न और नॉट, दैट इज अ क्राइटेरिया। वेदर somebody required a differentiation between the management and the ownership. Now this is a very important aspect. Somebody wants to form an organization wherein they need a board of director to be somebody else and they need to be a shareholder. अगर ऐसा कोई चाहता है तो एग्जाम्पल X और Y एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में A, B
एक्स रहे, ठीक है ना, ए बी और एक्स रहे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ए बी एक्स है और शेयर होल्डर एक्स और वाई है। सो नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, इवन दो एक्स इज कॉमन बट इवन हमने यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया। अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहता है तो एलएलपी में थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड ही करना पड़ेगा। पर अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं है कि एक्स और वाई यहाँ पे भी है और एक्स और वाई यहाँ पे भी है, तो देन यू कैन गो फॉर एलएलपी। बट सर प्रोजेक्ट साइज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट साइज क्लाइंट का क्या है। अगर प्रोजेक्ट साइज बहुत ही एक्सपोनेंशियल बड़ा हो, कंसिडर अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और अ स्पिनिंग मिल, जहाँ पे उनको ह्यूज बैंक लोन्स के या आउटसाइड फंड्स की डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट हो, तो फिर उन्होंने एक एलएलपी की जगह कंपनी फॉर्म करना चाहिए। अदरवाइज प्रोजेक्ट साइज इतना बड़ा नहीं है तो दे कैन गो विद अ टॉपिक लाइक दे विल गो विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एलएलपी। नेचर ऑफ बिजनेसेस क्या है, वेदर रिस्क इज इन्वॉल्व्ड और नॉट। इफ रिस्क इज नॉट इन्वॉल्व्ड, से एग्जांपल अ सॉफ्टवेयर और अ सर्विस प्रोवाइडर, they can traditionally go with a partnership, no need to go with LLP or a company. But if the risk is involved, they can go with company or a LLP. Then need of convertibility to other form of organization, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जब हम दोनों चीज को कंपेयर करते हैं। कितने लोग लगते हैं, सिंपल है, मिनिमम 2 लोग लगेंगे पार्टनरशिप बनाने, एलएलपी बनाने के लिए। दे कैन बी एन इंडिविजुअल और दे कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, इवन दो बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी बना सकता है। दे नीड टू अपॉइंट सम नॉमिनी, नॉमिनी वुड बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। वंस 2 पार्टनर हो गए, आई नीड टू डिसाइड हु वुड बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में डिफाइंड है, ऐसे लोग जो एलएलपी एक्ट के कंप्लायंसेस के लिए एक्ट ने नियुक्त किए हैं, अपॉइंट किए हैं। They have nothing to do with respect to the powers, है ना, day-to-day powers or a banking power or appointment of employees or customer or anything. No, ये सारे कोई powers में वो power defined नहीं है। Designated partner इतना ही है कि सेक्शन 7 बोलता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए, उसमें का 1% रेसिडेंट होना चाहिए जो एलएलपी एक्ट के कंप्लायंसेस के लिए रिस्पांसिबल हो। Then that designated partner should have at least a one digital signature. अभी जो लोग कंपनी फॉर्मेशन का काम कर रहे होंगे उनको पता है कि जितने भी हम शेयर होल्डर रखते हैं, इनिशियली प्रमोटर्स रखते हैं, सबका डिजिटल सिग्नेचर लगता है ना। स्पेशली जब अगर आप कभी प्रोड्यूसर कंपनीज अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे तो 10 डिजिटल सिग्नेचर्स लगते हैं, और एलएलपी में वी नीड टू हैव ओनली 1 डिजिटल सिग्नेचर। एंड डिसाइड द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर एन एलएलपी, दिस विल डिसाइड द जुरिसडिक्शन, इनकम टैक्स एंड ऑल। Partners contribution may consist of a tangible assets or intangible assets or immovable property or generally the cash. यहाँ पे important है कि आप अगर assets का contribution LLP में रखते हो तो LLP agreement में stamp duty accordingly pay करना पड़ेगा। अगर आप cash रखते हो तो then LLP agreement में stamp duty will be attract as per the capital clause, जितना capital आप रखते हो, और which we know about Bombay Stamp Act के 50,000 रुपए का अगर मैं capital रखता हूँ तो मुझे 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लगाना पड़ता है एंड डिविजिबल ऑफ इट। तो लाइक दैट वे स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन है। तो असेट, इफ यू वांट टू कीप एन असेट एज अ कंट्रीब्यूशन, स्टैम्प ड्यूटी विल बी सर्टेनली इंक्रीज। स्टेप वाइज सिंपल है। एमसीए पे एक दैट इज रजिस्ट्रेशन यूनिक नेम एलएलपी रन करके मैं फाइल करूंगा। वंस आई फाइल इट विद इन सेम डे और द नेक्स्ट डे मुझे नाम अवेलेबल मिलता है। ये नाम मुझे 3 महीने के लिए अवेलेबल मिलेगा। नाम सिलेक्ट करते समय यू नीड टू चेक इट द एग्जिस्टिंग नेम, जो भी कंपनीज के एज वेल एज एलएलपी के जो एग्जिस्टिंग नेम है उसको चेक करना है, प्लस ट्रेडमार्क को चेक करना है। नाउ दिस इज अ यूनिक थिंग व्हिच कम्स 3 years और 4 year बैक, बिकॉज ऑफ व्हिच आप जो रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होंगे उनको पता है कि काफी रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजर में डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि बहुत सारे नाम ट्रेडमार्क से कॉन्फ्लिक्टिंग आ रहे हैं। ट्रेडमार्क को चेक करना भी आसान है, वो भी ट्रेडमार्क के साइट पे ipindia.gov.in, जिसका लिंक आप एमसीए पे जब नाम चेक करते हो उसी के नीचे दिया हुआ है। आप जब ट्रेडमार्क चेक करते हो तो यू ओनली नीड टू चेक इट द क्लास। देयर आर 42 to 45 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। क्लास 5 टॉक्स अबाउट फार्मास्यूटिकल, क्लास 30 टॉक्स अबाउट फूड, क्लास 42 टॉक्स अबाउट द सर्विसेज। तो क्लास के साथ मुझे वो प्रोडक्ट को देखना है। अगर वो प्रोडक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोडक्ट अगर मेरे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आरओसी उसको नाम नहीं देगा। So one need to take care about the existing company name, LLP name और trade name। नाम अवेलेबल हो गया, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर मुझे एक और फॉर्म भरना है, फिलिप करके, जो कंबाइंड फॉर्म, पहले फॉर्म 2 हुआ करता था, अभी एक फिलिप करके फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन जो भी पार्टनर्स की है, प्लस उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस है, प्लस उनके एड्रेसेस है, प्लस रजिस्टर्ड ऑफिस है, प्लस उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी,
देन सब्सक्रिप्शन पेपर, ये सारा कुछ मैं फॉर्म फिलिप में अटैच करता हूँ. जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन है वैसा ही फिलिप है, पर फिलिप इज क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन. Once I do this, I will get issue a certificate in the form number 16. Register of Companies मुझे LLP form number 16 में certificate issue करेगा. Once this is done, within 30 days, I need to file a LLP agreement. I was under one notion. When I just started the practice कि नहीं LLP agreement पहले होना चाहिए और फिर registration बाद में होना चाहिए. But as per the law, I am having a choice. I can have my LLP agreement after my registration, or even though I can have my LLP registration before registration. दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है. जनरल केस में रजिस्ट्रेशन होने के बाद LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है और वो LLP एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म 3 में 30 डेज के अंदर हमको फाइल करना है. Then this is a procedure. Then there are certain things one need to take care while submitting a form. Is a very procedural thing. Registered office और correspondence address आप दोनों डाल सकते हो. करस्पॉन्डेंस एड्रेस आजकल जैसे अकोला या अमरावती या अहमदनगर जो सिटीज है, हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट आते हैं. जब कंपनी फॉर्म करते हैं, LLP फॉर्म करते हैं, तो बोलते हैं यार मेरा एड्रेस बॉम्बे या नागपुर, बॉम्बे का होना चाहिए, पुणे का होना चाहिए. सो दे कैन हैव देयर रजिस्टर्ड ऑफिस देयर एट मुंबई और पुणे. और वो बोलते हैं नहीं करस्पॉन्डेंस तो सब हम लोकल सिटी से करेंगे, तो दे कैन हैव करस्पॉन्डेंस एड्रेस एट अकोला, अमरावती और अहमदनगर. सो बाय दिस वे यू कैन डू दैट. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज एक्टिविटी, ये बड़ा केयरफुली ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जो एक्टिविटी हम LLP में करने वाले हैं वो एक्टिविटी आपके फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. आपने शायद बहुत पहले 11th-12th में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा होगा कि अगर कोई कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्ट के अपोजिट कुछ काम करती है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस उसको ये बोलता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो अवॉइड है. क्योंकि LLP एक्ट में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, पर क्योंकि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक LLP को भी लगेगा. तो उस सिचुएशन में LLP ने वही सारे काम करने चाहिए जो उनके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या LLP एग्रीमेंट में लिखा है. इसलिए जब भी हम इन चीज को ड्राफ्ट करेंगे, इंक्लूडिंग जब वो बिजनेस एक्टिविटीज लिखेंगे, तो एक्टिविटीज आपके फॉर्म में कवर होनी चाहिए. देन डिटेल्स अबाउट द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका नाम, एड्रेस, नेशनलिटी, इट्स अ वेरी प्रोसीजरल थिंग. दे नीड टू, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, कंपनी है, तो दे विल नीड टू अटैच अ रेजोल्यूशन कॉपी टू इट. Then they should have a subscriber sheet, जैसे मेमोरेंडम का लास्ट पेज होता है वैसे सब्सक्राइबर शीट होता है, ID proof and address proof. These are very simple procedural things, so I'm just run away out of this. Now come to the very important topic, that is LLP agreement. When I started my practice in in LLP in somewhere in 2009, एक client आए थे अपने पास जिनका एक LLP अपने फॉर्म किया 2009 में. So I was very happy because I get that assignment in June 2009. जैसे ही मार्च 2009 में LLP आया और उन्होंने LLP रजिस्ट्रेशन अपने से किया जून 2009 में. नो डाउट हमको रजिस्ट्रेशन को काफी दिन लग गया, तो पर हमको अपने को एक सेटिस्फेक्शन आया कि चलो ये नया काम आया है और अपन ने इमीडिएट ये काम को एग्जीक्यूट किया. देयर आफ्टर वो क्लाइंट कभी 2 या 3 साल तक अपने ऑफिस फिर से आए ही नहीं. फिर जब वो आए तो हमने चेक किया कि हम उनके रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, तो एक एरर आया कि कंपनी ने LLP एग्रीमेंट फाइल नहीं किया. फिर हमने चेक किया कि LLP अगर एग्रीमेंट फाइल नहीं किया तो क्या है, तो हमने एक फॉर्म नंबर 3 बनाया और उसको चेक किया कि भी हम लोग फॉर्म 3 भरते हैं, तो दैट कम्स टू 365 डेज. 3 साल हो चुके थे, जो भी दिन आया उसको 100 से मल्टीप्लाई होकर उतनी लैक्स में पेनल्टी आई. तो वी वर शॉक अबाउट दैट थिंग कि वेदर हाउ दिस पेनल्टी, कौन भरेगा ये पेनल्टी. वो क्लाइंट अपने को बोले और अपन क्लाइंट को बोले. नॉर्मली ये होता है डेडलाइन की चीजों में, तो क्लाइंट अपने पे डालता है. तो वी फाइल अ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन टू दी ROC को भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, दैट वाज द फर्स्ट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई, एंड दे रिजेक्ट आवर एप्लीकेशन. At end of the story, what it landed into, we need to pay that penalty, huge 100 रुपए रोज का जो भी था, और कंपाउंडिंग के लिए भी हम 6 महीने लेट हो चुके थे, तो हमको 3.5 साल का जो भी LLP एग्रीमेंट का फॉर्म नंबर 100 रुपीज पर डे वो पे करना पड़ा. सो दिस इज अ प्रोसीजरल थिंग इवन दो, बट अगर 30 दिन में हम इसको पे कर देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी क्योंकि एक जो स्कीम प्रेजेंटली चालू है कोविड पेंडेमिक के लिए, अगर आपका कोई भी LLP में कोई LLP एग्रीमेंट या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट अगर आपका पेंडिंग है, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी वेरिंग यू कैन फाइल दैट LLP एग्रीमेंट विदाउट एनी एडिशनल फीस. जो 50 रुपीज उसका फीस है, उस बेसिस पे ही हम ये LLP एग्रीमेंट फाइल कर सकते हैं. Now coming to the topic, that is, it's a very crucial document. क्यों?
क्योंकि ये LLP और पार्टनर्स के बीच में प्लस पार्टनर और पार्टनर्स के बीच में के रिलेशन को डिफाइन करता है। तो क्या यहाँ पे 2 एग्रीमेंट हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस, पर जनरली लोग एक ही एग्रीमेंट बनाते हैं LLP और पार्टनर्स के बीच में और पार्टनर के बीच में। ये दोनों भी रिलेशनशिप LLP एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है। एक्ट ने शेड्यूल 1 बनाया है जिसमें बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी है। जैसे हम कंपनीज एक्ट में एक टेबल F है जो हमारा ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अगर हमने कोई चीज हमारे आर्टिकल में ना डाली हो तो टेबल F ऑटोमेटिकली लगता है। 1956 में ये टेबल A हुआ करता था, तो टेबल F जैसा लगता है वैसे ही यहाँ पे शेड्यूल 1 ऑटोमेटिकली लगता है। जो अगर मैं मेरे LLP एग्रीमेंट में नहीं डालता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे प्रिवेल करेगा। जब आप किसी चीज को LLP एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करोगे तो ये सारे क्राइटेरियाज अगर ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा ड्राफ्टिंग इजी होता है। बहुत सारे जगह पे जैसे अगर हम साल की 20-25 LLPs बनाते हैं तो 20-22 LLPs में तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टीरियोटाइप रहेगा। पर कुछ 1 या 2 बहुत टिपिकल टाइप की LLPs हो सकती हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी का नीड है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें किए जा सकती हैं। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस, उनका कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, उनका ओनरशिप सेटअप क्या है, उनका डे टू डे वर्किंग क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ कंडीशंस बिटवीन द पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स रिमोटली बैठे होंगे अलग अलग सिटीज में तो वो कंट्रोल बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आप सिंपल रखना चाहते हो मेजोरिटी से या कॉम्प्लेक्स रखना चाहते हो, कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो वही कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रेशियोज क्या है, तो सेम पैरेलली क्या उनका प्रॉफिट रेशियो है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग वर्टिकल वाइज भी आप कर सकते हो, जैसे अपने ABC वेंचर का डिस्कशन किया वैसे भी आप कर सकते हो। नए पार्टनर के एडमिशन को क्या प्रोविजन है, सीजेशन का क्या प्रोसीजर है, सीजेशन को आप कंपलसरी भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल फॉर के मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए ने मेरे LLP में पार्टनर बनना और जब मेरा ये एक्स प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए उसके बाद मिस्टर ए ने एग्जिट हो जाना चाहिए। सो कैन आई ड्राफ्ट सच टाइप ऑफ प्रोविजन? द आंसर इज यस। सो दिस कैन बी ड्राफ्टेड even though this cannot be done in the private limited company because private limited company में there is no concept of expulsion or a compulsory takeover of a shares, but here can be done. Then expulsion of the partner, ये भी बड़ा important है। पार्टनरशिप में बहुत बार डिस्प्यूट होते हैं, पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट में काम कर देते हैं, तो whether partner can be expelled or not, this can be decided. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जब डिस्प्यूट आता है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज कौन है, आर्बिट्रेटर कौन है। अगर आपने आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाला है तो द पार्टीज कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द कोर्ट, दे नीड टू गो टू फर्स्ट आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है वही अपीलेबल होगा। वेदर यू वांट टू डू विद सम वीटो पावर, है ना, एक्स्ट्रा पावर किसी पार्टनर को चाहिए क्या, उसका कोई टेक्निकल एज है क्या, अगर वीटो पावर चाहिए तो आप डाल सकते हो। नॉन कॉम्पीट क्लॉज डाल सकते हैं। वी हैव डन दिस इन वन ऑफ द LLP वेयरइन इज अ हॉस्पिटल कंपनी, हॉस्पिटल LLP, जहाँ पे सारे पार्टनर्स जो थे वो डॉक्टर थे। तो हमने बोला कि जो डॉक्टर हमारे यहाँ LLP में पार्टनर है वो और कहीं एज अ प्रोफेशनल दूसरे किसी हॉस्पिटल में पार्टनर या शेयर होल्डर और प्रमोटर नहीं बनेगा। दिस इज अ नॉन कॉम्पीट क्लॉज, दिस कैन बी ड्राफ्टेड इन एन LLP एग्रीमेंट। देन देयर कुड बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ पार्टनर्स, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को ये पावर्स नहीं होंगे। मैटर्स रिक्वायर फॉर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड, यहाँ पे आप लिस्ट लगा सकते हो कि ये सारे पावर्स के लिए सबका पावर लिया जाए, ये सारे पावर्स के लिए मेजॉरिटी का डिसीजन लिया जाए, ये सारे पावर्स हम डेजिग्नेटेड को अलॉट करते हैं। यू कैन डू दैट। दिस फोरबिडन एक्ट्स व्हिच एक्ट आर नॉट अलाउड, नॉट टू डू का लिस्ट आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। दैट इज व्हाट ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ द शेयर इन LLP। आप बायबैक की भी प्रोविजन डाल सकते हो, इनडायरेक्टली से बायबैक। तो अगर LLP में जो पार्टनर्स है वो अपना जो शेयर है एज अ शेयर ऑफ अ पार्टनर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो लौटाएगा कैसे, वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है, करेक्ट। यू कैन हैव अ प्रोविजन फॉर मीटिंग्स इवन, ठीक है ना। तो यू कैन हैव अ जनरल मीटिंग, यू कैन हैव एन एग्जीक्यूटिव मीटिंग, दैट इज जो एक्टिव पार्टनर है उनको हम एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, सारे पार्टनर की मीटिंग को हम जनरल मीटिंग बोल सकते हैं। लॉ में ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, पर अगर आप चाहो तो ये सारी चीजें ड्राफ्ट कर सकते हो। परफेक्ट, दैट इज व्हाट आवर सिचुएशन। देन सो एडमिनिस्ट्रेटिव, सो आई एम जस्ट थोड़ा स्किप करता हूं मैं इसको। देन वी हैड डन दैट पार्ट। LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके फॉर्म नंबर 3 हमको भरना है। फॉर्म नंबर 3 एक बहुत बड़ा तो नहीं है, 4-5 पेज का फॉर्म है। अगर आप जब भी LLP एग्रीमेंट बनाइए तो फॉर्म नंबर 3 सामने रखिए, क्योंकि फॉर्म नंबर 3 के हिसाब से अगर आप LLP एग्रीमेंट बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फील करने में और कोई चीज छूटेगी नहीं, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा है। तो कीप दैट फॉर्म नंबर 3 विथ यू। LLP एग्रीमेंट प्लस अगर कोई उसमें
चेंजेस हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री डीड नीड टू बी फाइल्ड विद इन द 30 days of it. Then we have done that part. Yeah. So now here, till this period, till this moment, we have finished this first topic, basic concept and formation of LLP. Kiran sir, do I stop here for a moment or shall I continue? Continue, sir. Continue. Continue. चलिए. Sir, many members are just asking for format for formation of LLP. Sir, whether there is a specific format and which can be amended as per the system, as per the requirement. Yes. See, first of all, we can follow Schedule 1, correct? But Schedule 1 में अगर अपन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें कवर ही नहीं करी है. So what we can do, I can share some of the draft of LLP with your group, including this PPT too. और उसमें आप वो सब्जेक्ट्स को देख के चेंज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं. Yeah, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Then we'll move on to the next topic, that is the compliances involved. Important इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाते हैं तो साल में क्या compliances हमको करना है, अपन लोग उसको देखते हैं. तो compliances are bifurcated into routine and non-routine. Routine, non-routine हम लोग पढ़ेंगे, routine और non-routine. Once the LLP get registered, these are very routine thing, but just list down किया मैंने. Obtain a PAN number, registration under the other act. अगर food and drug है तो food and drug act में लेंगे, drug है तो drug cosmetic act में लेंगे. Then open a bank account, deposit a partner's contribution. Letter head जब आप print करेंगे तो LLPN, ठीक है ना, जैसे SIN नंबर होता है वहाँ पे LLP का जो registration number है वो put करेंगे. Need to have, act में कहीं लिखा नहीं, but they can have a rubber stamp. कॉमन सील ऑप्शनल है, लॉ में लिखा हुआ है अगर आप कॉमन सील रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं. देन इट विल बी पुट इन प्लेस सेक्शन 14 के हिसाब से. इफ यू डोंट वांट टू कीप इट कॉमन सील, इट इज टोटली ऑप्शनल. नए कंपनीज एक्ट में भी कंपनीज के लिए भी ये ऑप्शनल है. मेंटेन नेसेसरी रजिस्टर्स इफ स्पेसिफाइड बाय एलएलपी. अगर एलएलपी एक्ट में कोई रजिस्टर्स आपने स्पेसिफिक डाले हैं तो मेंटेन कीजिए, अदरवाइज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज अ मैंडेटरी क्लॉज. देन यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रूल 14 थोड़ा अलग प्रोविजन बोलता है. There is a flexibility for LLP that LLP can maintain their books of accounts either in cash or on accrual basis. I request जब प्रसाद सर डेलिब्रेशन देंगे तो ये इस चीज पे हाईलाइट करें कि क्या इनकम टैक्स में whether it is allowed or not cash or accrual basis. But in LLP Act rule number 24(2) allows cash basis or an accrual basis. As far as audit is concerned, जब तक कि मेरा टर्नओवर LLP का 40 लाख एक्सीड नहीं होता या तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन 25 लाख एक्सीड नहीं होता, तब तक मुझे ऑडिट नहीं कराना है. तब तक मुझे सेल्फ सर्टिफिकेशन से ही LLP के जो फाइनेंशियल से वो आरओसी को सबमिट करने हैं. LLP कैन क्लोज इट फाइनेंशियल ईयर बाय 31st of March. पहला साल 18 महीने का हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी फॉर्म्स द LLP ऑन 1st September 2020, so 2020, then it can close it financial year on 31st March 2021 or 31st March 2022 इवन. ये स्कोप LLP में है क्योंकि LLP में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन थोड़ा वाइड है. देन प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 इयर्स तक जैसे इनकम टैक्स में है वैसे ही प्रोविजन है, पर अगर कोई लिटिगेशन है तो आई नीड टू मेंटेन इट फॉर अ मोर ईयर. देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई नीड टू फाइल? देयर आर 2 एनुअल डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई नीड टू फाइल. वन LLP 8 फॉर्म, कितने दिन में मुझे भरना है? दैट इज विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ the 6 month from the end of financial year. So if it is the 31st March 2020, so 6 month that is 30th September, 1 month that is 30th October. So by 30th October I need to file form number 8. जैसे ही ROC में हम कंपनीज एक्ट में एक AOC 4 फाइल करते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पे भी मुझे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सबमिट करना है. देन नेक्स्ट रिटर्न इज फॉर्म नंबर 11. बड़ा ऑड है ये रिटर्न. That is within 60 days from the date of completion of the financial year. So 30th May को every year this return need to be filed. ये रिटर्न के लिए बड़ा क्यूरियोसिटी भी है काफी लोगों में कि 31st May या 30th May तक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरा फाइनलाइज ही नहीं होगा, तो ये रिटर्न मैं भरूंगा कैसे? ये रिटर्न बहुत ही प्रीफिल रिटर्न है. अगर ये फॉर्म नंबर 11 अगर आप ओपन करें, LLP सिन नंबर डालें और प्रीफिल करें तो सारा कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली भर जाएगा. सिर्फ इसमें दो चीजें अपने को डालनी है कि LLP का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं, ये लिखना है. परफेक्ट. और पार्टनर्स ने ये कंट्रीब्यूशन लाया है कि नहीं लाया, जो भी.
ये सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा एग्जैक्ट कोई भी वर्डिंग उसमें लिखनी नहीं है, करेक्ट? एग्जैक्ट कोई भी फाइनलाइज फिगर नहीं लिखना है, इसलिए ये रिटर्न फाइल करना आसान है 30th May. If you don't file this return within time, then it is a 100 rupees per day penalty is there. Then it's a income tax return every year जो LLP को फाइल करना है. तो annually there are only 2 returns. Non-routine returns है if there is a change in designated partner, if there is a change in LLP agreement, if there is a change in name, if there is a change in service of address, if there is a conversion from firm into the company, firm into LLP, if it's a conversion from company into LLP, or a strike off. These are non-routine forms. ओनली एप्लीकेबल जब ये पर्टिकुलर सिचुएशन आता है. थोड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए मैं यहाँ पे इस जो प्रोसीजरल चीजें को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ. सो एज आई नीड टू सम अप बाय 6:20 समवेयर 6:15 और 6:20 सो दैट प्रसाद सर भी डेलिब्रेट करे, तो मैं थोड़ा सा जो प्रोसीजर चीजों को उसको एक कर्सरी व्यू लेता हूँ. So we will finish this both the topic. Now we come to the important topic, that is the advantage versus partnership and private limited company. So if you compare the LLP with a Companies Act, ठीक है ना? So first I compare my Companies Act or an LLP. If I want to guide somebody, here boss, why don't if it's your company, why don't you convert your company into a LLP? So what are the things I can explain him? जैसे Companies Act में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं फुल फ्लेजेड, उनको पता है there is a stringent provision of DPT-3. Every year by 30 जून को DPT-3 भरना है. DPT-3 में जितने भी डिपॉजिट्स मैंने एक्सेप्ट किए हैं, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, बैंक लोन है, सब्सिडीज है, वो उसको मुझे देना है. ये देना है मुझे हर साल 30 जून को. अब 30 जून को प्रॉब्लमेटिक है कि 30 जून को बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज नहीं होती, पर वो फिगर मुझे DPT-3 30 जून को देनी है, जिसके कारण बहुत बार ज्यादातर कंपनीज ये रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाती है. और जब वो करेगी, जब वो सितंबर में अपने बुक्स फाइनलाइज करेंगी, तो आई नीड टू पे द पेनल्टी फ्रॉम जून टू सितंबर 100 रुपीज पर डे, और व्हाटएवर द स्लैब इज अवेलेबल. इस पे 100 रुपीज पर डे नहीं है, पर स्लैब है, तो एडिशनल फीस मुझे पे करना पड़ता है. तो DPT-3 एक मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक इशू है, जहाँ पे मैंने सोचना है कि कंपनी को मैंने LLP कन्वर्ट करना है. अनसिक्योर्ड लोन जो मुझे बाहर से अलाउड नहीं है, वो DPT में शो हो जाते हैं, इसलिए मैं LLP की तरफ जा सकता हूँ. MSME एक रिटर्न है, हाफ ईयरली है, अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर में फाइल करना है, अक्टूबर टू मार्च मुझे अप्रैल में फाइल करना है. यहाँ पे मुझे मेरा डिफॉल्ट बताना है. अगर मैं कंपनी हूँ और मैंने किसी MSME से अमाउंट लिया है और वो मेरा 45 डेज से ज्यादा डिफॉल्टेड है, तो मुझे MSME 1 रिटर्न फाइल करना है. जो कल मुझे MSME जो डिपार्टमेंट है वो पूछ सकता है कि आपने लेट क्यों किया, और देन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट ऑफ 18%. ये डिस्क्लोजर का मैकेनिज्म है. ये DPT, ये MSME मुझे LLP में लागू नहीं है. Then there is INC 22A, रजिस्टर्ड ऑफिस की KYC है, ये एडिशनल फॉर्मेलिटी है. हर साल मुझे DIN KYC करना है, एनुअल फॉर्म्स फाइल करना है. तो ये सारा कुंबरसम प्रोसेस है, जिसके कारण आई कैन गाइड समबडी टू कन्वर्ट दैट कंपनी इनटू LLP. देन फर्दर इनकैपेसिटी टू डू बिजनेस ट्रांजैक्शन, MOA ड्राफ्टिंग. अभी जो भी MOA जो भी लोग ड्राफ्ट करते हैं, अभी क्योंकि हम मेन ऑब्जेक्ट ही ड्राफ्ट कर पाते हैं, अभी देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. अदर ऑब्जेक्ट जो 1956 एक्ट में था, जिसमें हम 25-50 ऑब्जेक्ट्स ड्राफ्ट कर सकते हैं. अभी नए एक्ट में हम वो कुछ ड्राफ्ट नहीं कर पाते. नए ऑब्जेक्ट में सिर्फ आप मेन ऑब्जेक्ट ही ड्राफ्ट कर पाते हो. तो मैं कंपनी बहुत ही मल्टीपर्पज यूज के लिए नहीं ड्राफ्ट कर पाता हूँ, लिमिटेशन आ जाती है. तो LLP में मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ. देन प्राइवेट लिमिटेड इज एट पार विद पब्लिक लिमिटेड. बहुत सारी प्रोविजन जो पब्लिक लिमिटेड की वो प्राइवेट को ऑटोमेटिकली लगती है. स्पेशली अगर आप देखेंगे सेक्शन 185 लोन्स टू रिलेटेड पार्टी, देन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सारा कुछ जो है वो हमको पहले प्राइवेट लिमिटेड को 1956 में अवेलेबल था, और अब ये सारा अवेलेबल नहीं है. सो दिस कैन बी क्राइटेरिया टू डिसाइड कि वी कैन कन्वर्ट अवर कंपनी इनटू LLP. एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, इफ योर मेंबर इंक्रीज टू 200, तो उनको पब्लिक लिमिटेड में जाना है, वो तो वॉर रिस्ट्रिक्शन जोन है. सो आई कैन गो विद अ प्राइवेट LLP स्ट्रक्चर. और अगर मैं पब्लिक लिमिटेड में जाता हूँ, तो नाउ करंटली देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ अ डीमैट कंपलसरी. अनलिस्टेड कंपनी को डीमैट है, वो भी एक मेरा एक्सपेंसेस क्राइटेरिया बन जाता है. तो आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू LLP rather than to go with a public limited company. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर्स के अलावा और भी प्रॉब्लमेटिक है कि कुछ ट्रांजैक्शन मैं कर ही नहीं पाता हूँ. लोन टू रिलेटेड पार्टी 185 में एग्जम्पशन आ गया है कंपनी टू कंपनी, पर कंपनी टू इंडिविजुअल एग्जम्पशन नहीं आया है. सो यहाँ पे मेरा 185 के कारण आई कैन स्विच ओवर. देन नो मैंडेटरी मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं. कंपनीज एक्ट में अभी SS1, SS2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 और 2 भी आ गए, और डिटेल है. कंप्लायंसेस करना प्रैक्टिकली छोटे सिटीज में क्लाइंट के साथ काम करना डिफिकल्ट होता है.
so that we can advise them to convert themselves from company into LLP. There is no restriction on salaries, compensation, distribution, profit to the partners. Under LLP Act में नहीं है, no doubt Income Tax Act में है, but LLP Act में ऐसा कोई restriction नहीं. तो अगर मेरा public limited company है, MD salary can be only up to 5% of the net profit, और overall remuneration can be 11 or 12%. ये सारे restrictions यहाँ पे नहीं है. No restriction on withdrawal of capital. यहाँ पे LLP में मेरे को कोई capital withdrawal पे restrictions नहीं है. So these are the criteria for which I can decide to convert my company into an LLP. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और डीम डिविडेंड की प्रोविजन, ये भी सारा कुछ एक क्राइटेरिया हो जाता है. डीम डिविडेंड बहुत से लोगों को प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट हो जाता है, काफी लिटिगेशन लेवल पे जाते हैं और फिर पता चलता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है. तो डीम डिविडेंड भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है जो कि एलएलपी में वो प्रोविजंस आई होप लागू नहीं होती है. डार्क साइड ऑफ द पिक्चर, नॉट ओनली ब्राइट साइड. अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा? आई कैन नॉट गो कंपनी इनटू एलएलपी, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो नहीं जाऊंगा. अगर मुझे मैनेजमेंट और ओनरशिप में डिफरेंशिएशन करना है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया है कि मेरे को ए, बी और एक्स चाहिए और एक्स और वाई शेयर होल्डर चाहिए, ये मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए और ये मेरे को शेयर होल्डर चाहिए, ऐसा सिचुएशन आप एलएलपी में नहीं कर पाओगे. कंट्रोलिंग थ्रू मेजॉरिटी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. कंपनीज में वी नो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ 91%, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ 76%, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ 51% शेयर होल्डिंग, जिसके कारण आप कंपनी को कंट्रोल कर पाते हो. यहाँ पे उतना आसान नहीं है. सिक्योरिटीज लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, ये पॉसिबल नहीं है. इजी वल्नरेबल टू द डिस्प्यूट्स. अगर पार्टनर में डिस्प्यूट हो जाता है तो एलएलपी का पार्टनर कहीं कंप्लेंट करता है तो अथॉरिटी या बैंक उसको पार्टनर ट्रीट करती है और वो उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन करेगी. कंपनीज के केस में शेयर होल्डर की कंप्लेंट को सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंटरटेन करता है, आउटसाइडर एजेंसी जनरल केस में वो नहीं करता है. तो दैट इज व्हाट इफ यू कन्वर्ट, दिस इज अ डार्क साइड ऑफ द पिक्चर. देन डिसजॉइंट बिटवीन रजिस्टर्ड ओनर और द बेनिफिशियर ओनर. अगर मेरे कंपनी में मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड ओनर है और उसका बेनिफिशियर ओनर एक्स है, तो कंपनीज एक्ट में देयर इज अ प्रोविजन सेक्शन 89-90 में ये पॉसिबल है कि ए रजिस्टर्ड ओनर हो और एक्स बेनिफिशियर ओनर रह सकता है और उसका डिक्लेरेशन हम कंपनी को फाइल कर सकते हैं. आपने स्पेसिफाइड बेनिफिशियर ओनर की प्रोविजन अभी रिसेंटली पढ़ी होगी सेक्शन 89, 90, 91 में. तो ऐसी सिचुएशन एलएलपी में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ठीक है. एलएलपी में ये भी एक लिमिटेशन आ सकता है कि मैक्सिमम सैलरीज टू द पार्टनर्स, ये एक डिफाइंड है, तो उसके ऊपर अपन नहीं दे पाते हैं, तो जो कि कंपनीज एक्ट में वैसा कोई सीलिंग नहीं है. तो ये एक डार्क साइड ऑफ द पिक्चर है जो कन्वर्ट करते समय ध्यान देना है. नाउ इफ आई कंपेयर विथ द क्वेश्चन जो भंडारी सर ने इनिशियली पूछा था कि हम पार्टनरशिप फर्म को और एलएलपी में कन्वर्जन सोचे तो क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं. तो पहला क्राइटेरिया हो सकता है एक लिमिटेड लाइबिलिटी. पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी. अपर सीलिंग ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनरशिप में आई कैन नॉट गो मोर देन 50, बट आई कैन हियर गो फॉर मोर देन 100 or 200 or 1000. देन नेम आइसोलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग वन क्लाइंट नेम Om Prakash Shiv Prakash. Consider my client name is Om Prakash Shiv Prakash. It's a 100-year-old firm at Akola. Okay, 100-year-old firm at Akola. Now they are having an office name Om Prakash Shiv Prakash Kirana Bazaar Akola. Okay, Kirana Bazaar Akola. Now being is a partnership firm, whether somebody else can open the name firm Om Prakash Shiv Prakash Kirana Bazaar Akola, the answer is yes, क्योंकि partnership firm में वही नाम से दूसरा फर्म खोलने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. पर अगर वो एलएलपी होते हैं, एलएलपी हो जाता है, तो वो नाम एलएलपी एक्ट में एज वेल एज कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगा. ठीक है. सो नाउ दिस वे नेम आइसोलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर आउटसाइडर, रिवीलिंग ऑफ अकाउंट्स, क्रिएशन ऑफ चार्जेस, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स, ये सारा कुछ एलएलपी में कंपेयरिंग टू पार्टनरशिप होगा. मेरा बैलेंस शीट का कॉपी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को फाइल होता है. मेरे चार्जेस जो क्रिएट हो रहे हैं वो आरओसी को फाइल होता है, दैट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. डिटेल ऑफ पार्टनर्स लोगों को पता चलता है जो मैं फॉर्म नंबर 11 फाइल करता हूँ. सो ट्रांसपेरेंसी इज मोर. देन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी और लिटिगेशंस के लिए सेपरेट आइडेंटिटी होती है. सारे पार्टनर्स पे इंडिविजुअल लिटिगेशंस नहीं हो सकता, इट्स ओनली द एलएलपी के लिए ही होगा. बैंक परसेप्शन की बात करेंगे तो थोड़ा प्रोक्योरमेंट ऑफ द फाइनेंस जो है वो इजी हो जाता है एज कंपेयर टू अ पार्टनरशिप. So here we compare these two organizations. Now I'm moving on to the head to the conversion of this firm into conversion of company into and conversion of firm into an LLP. Procedural चलते हैं.
क्राइटेरियाज में ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं थोड़ा ब्रीफ करने के लिए. What I need to do is, अगर if I want to convert my partnership firm into a company, ठीक है, तो जब मैं पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी डिसाइड कर देता हूँ, तो मुझे सिंपल सेक्शन चैप्टर 5 सेक्शन 55 देखना है, करेक्ट. सेक्शन 55, 58 एंड सेकंड शेड्यूल, छोटा सा प्रोविजन है. अगर ये इतना ही मैं प्रोसीजर देख लूँ तो मेरा कन्वर्जन आसान है. एक कट ऑफ डेट में मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर लूंगा. मान के चलो आज का डेट है तो मैं आज का बैलेंस शीट ड्रॉ कर लूंगा. आज का बैलेंस शीट ड्रॉ करने के बाद मैं सीए सर्टिफिकेशन कर लूंगा उसका एसेट्स और लायबिलिटीज का. देन आई विल अप्लाई फॉर द नेम, एप्लीकेशन फॉर द नेम. व्हाइल अप्लाइंग द नेम मैं कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू कंपनी पे टिक करूंगा रेदर देन न्यू कंपनी. वंस द नेम हैज बीन अलॉटेड, आई विल फाइल अ फिलिप फॉर्म. जैसे रजिस्ट्रेशन में मैं फिलिप फॉर्म फाइल करता था, वैसे मैं फिलिप फॉर्म फाइल करूंगा along with one more additional form, that is form number 17. फॉर्म नंबर 17 में मुझे कुछ एडिशनल चीजें देनी है. डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स देने हैं, पार्टनरशिप डीड देनी है, उनके सबके कंसर्न देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज देनी है जो सीए सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. अगर मेरे पास में कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसका एनओसी देना है, और लास्ट इनकम टैक्स का रिटर्न देना है. अगर मैं इतने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म नंबर 17 के साथ फिलिप में मैं जोड़ देता हूँ, तो जनरल केस में रजिस्ट्रेशन आना काफी इजी, आसान हो जाता है. रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म नंबर 19 में आ जाएगा. एक बार मेरे को रजिस्ट्रेशन आ गया, देन जो भी मेरा आरओएफ है, जिसके पास मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है आरओएफ के पास, उसको मैं फॉर्म नंबर 14 सबमिट करूंगा, सो दैट वो मेरा रजिस्ट्रेशन उसके रजिस्टर में कैंसिल कर दे. सो आई नीड टू ओनली फाइल द फिलिप फॉर्म 1 and form number 17 and form number 14, so that my firm will be converted into an LLP. किसी को कोई डाउट हो तो सर इस मोमेंट पे पूछ सकते हैं प्लीज. भंडारी सर. हाँ सर. हाँ, कोई डाउट हो तो आप पूछिए. सर अपन है ना सब एट द एंड ऑफ द सेशन अपन पूरे लोन्स क्लियर करेंगे. ग्रेट सर, ग्रेट सर. ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, बाद में लेंगे अपन. यस यस यस, ठीक है. तो देन कुछ की इश्यूज ध्यान में रखना है हमको. कंडीशन, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज डन. कुछ की इश्यूज ध्यान में रखना है. कंडीशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफाइड. यानी अगर पार्टनरशिप फर्म में एसेट पे अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो मैं एनओसी ले लूंगा. आई रिपीट, आई विल टेक अ एनओसी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का एनओसी लेके मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. ठीक है. जो भी लायबिलिटी मेरे कन्वर्जन के पहले की होगी, वो लायबिलिटी के लिए पार्टनर जो है वो वैसे भी जॉइंटली और सेवरली लायबल है. तो प्रोस्पेक्टिवली देयर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, बट रिट्रोस्पेक्टिवली जो लायबिलिटी है उनका जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होगा. कन्वर्जन के 2 साल तक जब भी मैं मेरे कंपनी का नाम लिखूंगा तो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में मेरा पुराना नाम, फॉर्मर नेम और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मुझे लिखना कंपलसरी है. सो हियर वी कन्वर्ट दिस पार्टनरशिप फर्म इनटू अ LLP. Then now we want to convert our private limited company or a public limited company in an LLP. Simple है. Chapter 7 section 56, 57, 58 read with schedule 3 and schedule 4. अगर मैं इतनी चीजों को फॉलो कर लूं तो I can convert my company whether a public limited, unlisted or a private limited into a LLP. What I need to do, these are the criteria to think of. I'm just skipping. I just jump into the provision procedure. This is a procedure. पहला स्टेप, एप्लीकेशन फॉर नेम. जैसे मैंने LLP फ्रेश फॉर्म किया है या कन्वर्ट फ्रॉम फर्म इनटू कंपनी फॉर्म किया है, तो मुझे रन फाइल करना है. सो आई नीड टू फाइल दिस फॉर्म नंबर रन LLP, एंड LLP द नेम विल बी परफेक्टली अवेलेबल, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है, इसलिए ये नाम मुझे 100% मिल ही जाएगा. नो नीड टू डू समथिंग. once I get this name, I will file a Philip form together with form number 18. वहाँ पे मुझे 17 फाइल करना था या मुझे 18 फाइल करना था फॉर कन्वर्जन. While taking this, I need to ensure कि there is no security interest on my assets. कंपनी की कोई assets पे कोई security interest ना हो. अगर मेरे कंपनी की चार्ज रजिस्टर्ड हुआ है, security interest किया हुआ हो, तो जब तक मुझे ये चार्ज वेकेंट नहीं करूंगा तब तक कन्वर्जन अलाउड नहीं है. एक जगह वो बोलता है कि कंपनी के सिक्योर क्रेडिटर का आपने कंसेंट लेना है, तो मुझे कभी लगा ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि एक जगह वो आप बोल रहे हो कि आपके एसेट्स पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि सिक्योर क्रेडिटर का आपने कंसेंट लेना है. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, अगर कंपनी ने लोन लिया है और असेट डायरेक्टर ने दी हो,
तो उस केस में कंपनी के असेट पे लोन नहीं है, तो आई विल टेक द कंसेंट फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर। पर अगर कंपनी की असेट पे लोन लिया हुआ होगा तो मुझे असेट पहले वो चार्ज को रिलीज करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू LLP। दैट इज व्हाट। देन जो भी कंपनी का नाम है उसके सफिक्स में LLP लग जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी मुझे अटैच करना है। मेमोरेंडम में जो भी मेरा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा वही मेरी बिजनेस एक्टिविटी रहेगी कन्वर्जन के समय। डेजिग्नेटेड पार्टनर मुझे डिसाइड करने हैं, वो जो भी डायरेक्टर और नॉन डायरेक्टर भी रह सकते हैं। जो भी मेरे शेयर होल्डर होंगे वो 100% वही रेशियो में मेरे पार्टनर बन जाएंगे। दैट इज अ केस। फॉर्म नंबर 18 अप्रूव करते समय ROC ये चीजों को देखता है कि कोई भी फॉर्म सिस्टम में पेंडिंग ना हो, कोई चार्ज ओपन ना हो, एटलीस्ट 1 साल की बैलेंस शीट और रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। कंपनी जो कन्वर्ट हो रही है उसके पास शेयर कैपिटल होना चाहिए। गारंटी कंपनी को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। सेक्शन 25 और सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिट है वो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारे कंडीशंस है। व्हाइल अटैचिंग फॉर्म नंबर 8 में मुझे शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, IT रिटर्न्स, NOC फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, NOC फ्रॉम बॉडी और अथॉरिटीज अगर मेरे को कोई एप्लीकेबल है तो, देन स्टेटमेंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज CA सर्टिफिकेशन होगा, और स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर और उनका जो कंसेंट है। ये सारा PPT में शेयर कर रहा हूँ। सो इन्फॉर्मेटिव चीजों को ब्रशअप भी आपको लगेगा तो ये आपके पास हैंडी रहेगा जब आप खुद कभी कुछ इन चीजों में काम करेंगे तो। देन थर्ड टॉपिक, दैट इज टेक ओवर ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न इनटू अ LLP। ए बहु हाँ, तो proprietary to into company, if I want to do it, what I can do, I can form an LLP. Once I form an LLP, I will enter a takeover of business agreement with the proprietor. Provided जब आप LLP agreement बनाओ तो उसमें आप टेक ओवर का क्लॉज या ऑब्जेक्ट क्लॉज वैसे ड्राफ्ट करो. It will attract the stamp duty. It will attract the capital gain. Perfect. All the licenses, permission will be changed in the name of a LLP. So for proprietorship into LLP, there is no conversion provision. But from partnership firm or a company, there is a conversion provision. What is the effect of conversion? बड़ा important है. Section 58 जो हमको ये बताता है कि भाई अगर कोई ट्रांसमिशन जैसे ट्रांसफर कोई डॉक्यूमेंट या एसेट्स होती है तो देयर कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट. पर अगर कोई लॉ बोलता है कि देन देयर इज अ लॉ बोलता है कि द एसेट्स और द लायबिलिटीज विल गेट ट्रांसफर, सो वी कॉल एज अ ट्रांसमिशन. इफ इट्स अ ट्रांसमिशन देन देयर इज नो कन्वेंस डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो सेक्शन 58 क्या बोलता है कि जैसे मेरा कन्वर्जन हो जाता है फ्रॉम फर्म इनटू द LLP और फ्रॉम कंपनी इनटू LLP, all the tangible, intangible interest, right, privileges, undertaking shall get vested. बड़ा important word है, vested in the LLP without any further assurance. Automatically सारा के सारा जो assets है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा. Then कंपनीज एक्ट में जो या ROF में जो फॉर्म है उसको डिसॉल्व माना जाएगा. जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, कोई कन्विक्शन है, कोई रूल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दैट विल सर्टेनली कंटिन्यू टू द न्यू नेम. परफेक्टली, दैट इज व्हाट. स्टैम्प ड्यूटी इंप्लीकेशन ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है अभी भी, क्योंकि रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट में कन्वर्जन को स्टैम्प ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है. भले ही हम सेक्शन 58 का प्रोविजन उनको बताते हैं, पर कुछ केसेस में जो स्टैम्प की अथॉरिटीज है उनका एडमेंसी रहता है, तो स्टैम्प का असेसमेंट कराना चाहिए. जिन लोगों ने डीमर्जर या मर्जर कराया होगा उनको पता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर या NCLT का ऑर्डर को स्टैम्प असेसमेंट कराते हैं बॉम्बे में स्टैम्प और रजिस्ट्रार से. तो वो केसेस थोड़े से लिटिगेशन वाइज हो सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा असेट अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके उसका असेसमेंट करवा ले. सो सेक्शन 58 को सामने रख के तो वहाँ पे स्टैम्प की प्रोविजंस में डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक. Then, so next is a miscellaneous some provisions. We'll go to that provisions also. I hope this has been covered already. Index में critical issues. इसको मैं just एक 2 मिनट में बता के finish करता हूँ, फिर प्रसाद सर को सुनते हैं हम लोग. कि there are certain critical issues which we can say because of which the LLP could not take up और कुछ limitations आ जाएंगी. HUF cooperative society minor cannot be a partner, wherein other organizations में होता है. Conversion of 2 more partnership into single LLP अभी भी कोई provision नहीं है, और अगर रूल पढ़ेंगे तो ऐसा कोई प्रोविजन दिखाई नहीं देता है. सो दैट्स अ लिमिटेशन. कभी किसी के पास 2 पार्टनरशिप है वो LLP में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 LLP क्रिएट हो जाएगी. देन दैट 2 LLP कैन बी कन्वर्ट इनटू अमलगमेशन, तो प्रोसीजर बढ़ जाता है.
Then third, next is LLP cannot undertake a non-profit activity. That's a difficulty. LLP cannot raise the money like public, preferential capital, debenture. So यहाँ पे limitation है. LLP cannot go with NBFC activity. NBFC activity, one need to go with the Companies Act only with 2 crore capital and all. And there is no provision for operation and mismanagement. अगर LLP में partners के साथ operation और mismanagement होता है, तो then there is no specific provision. There is only one provision for complaint for making an investigation. Investigation officer appoint होगा, central government appoint करेगा, वो report करेगा, then there is a suit for it. But there is no authority for operation mismanagement. तो relief जो है partner को easily नहीं मिल पाएगा. That is the case. Then yeah, this is what. So here I finish my presentation. I hope my message get conveyed to all. अब जो भी कुछ डिफिकल्टीज अगर है, पहले या प्रसाद सर को हम सुने और फिर डिफिकल्टीज पे जाए, जैसा किरण सर जैसा बोलेंगे। सर प्रसाद सर को सुन लेते हैं पहले, भी दोनों पे साथ में लेते हैं। We'll first yes sir, Prasad sir. Yes sir, please take the charge. Take over the charge of the session sir for income tax purpose now. Okay, thank you very much to all the branches, all the, we can say all the triple A's for giving me this opportunity, and it's an honor, a real honor to share the dais, we can say, with Ram sir. So he also, I also treat him as my new friend in this profession. Now here Ram sir has already covered all the provisions, and here let me, before I proceed, राम सर ने बराबर बोला था, उनको नाइट वॉचमैन करके भेजा था, लेकिन सर हमारे किरण सर जो है वो धोनी है कैप्टन, राइट? उन्होंने क्या किया, नाइट वॉचमैन को विराट कोहली को बेच के उसने सबको सरप्राइज कर दिया। सो वो बैटिंग भी आपने विराट जैसी किया पूरा। मुझे भी बहुत सारे ये पिक्चर क्लियर होगा एलएलपी के बारे में, राइट? अभी एट द आउटसेट आपने जो बराबर बात कही कि एलएलपी का ये आके मतलब 2009 में एक्ट पास हो गया, उसके बाद आपने जो बोला कि आज तक देखा गया कि एलएलपी को इतना चाहे वैसे रिस्पांस नहीं मिला है, राइट? दिस इज ये। लेकिन एक मेरा थोड़ा सा उसमें ओपिनियन, मतलब मेरा सा जितना छोटा सा नॉलेज है उसमें मैं एक बोल सकता हूँ कि सिर्फ सबसे एक बड़ा एडवांटेज जो दिया है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी का। मतलब ऑलमोस्ट भी एग्री विथ मी कि लिमिटेड लाइबिलिटी का दिया है, राइट? लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है, पीपल स्टिल प्रेफरिंग द पार्टनरशिप फर्म, राइट? ये लिमिटेड लाइबिलिटी का भी दे आर नॉट, उनको कोई एडवांटेज नहीं लग रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी। वो क्यों हो रहा है? सी जनरली क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो लाइबिलिटी इज इन रिलेशन टू द लोन, मेन अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स, मेन बर्डन इज ऑफ the loan from the banks, various institutions. And what happens if loan is small loan की बात नहीं करेंगे जो unsecured होता है, लेकिन बड़ा लोन जो होता है वो always secured होता है, and in either it is LLP or it is partnership firm, they always take the personal guarantee of the partner की personal guarantee उसमें लेते हैं। तो जब पार्टनर की पर्सनल गारंटी ले रहे हैं तो भले वो लाइबिलिटी इसमें कंपनी में या एलएलपी में या फिर पार्टनरशिप फर्म में भले वो लिमिटेड होगा, लेकिन उसको छुटकारा नहीं है उस लोन से, राइट? बिकॉज ही इज पर्सनली लाइबल फॉर दैट, बिकॉज उसने बैंक के साथ गारंटी दिया है और वो पर्सनल गारंटी दिया है, एंड पर्सनल गारंटी फुलफिल करने के लिए उसको ही इज पर्सनली लाइबल, बिकॉज उसके पर्सनल उसने एसेट उसके लिए मॉर्गेज रखे, या फिर भले ही मॉर्गेज उसने रखा है एलएलपी का या फिर पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन पर्सनल लाइबिलिटी वहां पे उसका आता है, राइट? सो ऑलवेज प्रेफर्स कि पार्टनरशिप, ठीक है। अभी यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगा, बाकी से एक और डर क्या है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मुझे जितना इसमें है उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ, और एक क्या होगा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है आरओसी के पास। अभी एज पर रजिस्ट्रेशन अगर देखेंगे, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी राह देखने की जरूरत नहीं है, दैट रिसीट इटसेल्फ बी ट्रीटेड एज योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब उनसे अपने को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी अपने को इंतजार नहीं, और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी मेजर चेंज इन द पार्टनरशिप डेट, राइट, उसका अपने को ऑफिस दोबारा देखने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका 25 साल अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो आपको 25 साल तक कुछ आपको कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। एज फार एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द LLP इज कंसर्न, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो है ROC के पास। राइट, यही डर लगता है लोगों को कि ROC के पास रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ एक कंप्लायंस करना है साल भर में, नहीं, लेकिन क्या पता गवर्नमेंट आगे जाके क्या करेगी। नहीं, ये आपको आज एक रजिस्ट्रेशन वहां पे दिया है, साल का एक कंप्लायंस है, आगे जाके साल के 2 कंप्लायंसेस करेगी, राइट, आगे जाके साल के 4 कंप्लायंसेस करेगी, पता नहीं है, पता नहीं। जैसे अभी कंपनी के भी, मेरा खुद का भी कंपनी है, तो अभी तो वो कोविड के भी आप नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं ये आपको ROC को बोलना है। मतलब इतना कंट्रोल ROC कर रही है कंपनीज के ऊपर, और LLP का रजिस्ट्रेशन भी इन ROC के पास रखा है। तो आदमी सोचता क्या है, देखो लिमिटेड लाइबिलिटी का मेरे को फायदा नहीं है, जैसे मैं बोला ठीक है क्रेडिटर्स का एक पार्ट रहेगा, आई एम नॉट फुल्ली करेक्ट, लेकिन वो एक मेन है कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मेरे बाकी के क्रेडिटर कुछ नहीं, मैं टाइम टू टाइम पे करता हूँ, मेरे को वो चिंता नहीं है। लेकिन मेरा बैंक लोन 5-10 करोड़ का बैंक लोन है, राइट, और मेरा बिजनेस ऐसे नहीं कि सामने वाला बोलता है कि नहीं तुम्हारी LLP है तो मैं ऑर्डर दूंगा, ऐसा मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी क्या सोचता है कि इट इज बेटर यार मेरा फर्म हो जाए, मुझे कोई कंप्लायंस नहीं चाहिए, नहीं। तो ये एक कंफर्ट जो है वो एज फार एज अवर इंडियन मेंटालिटी इज कंसर्न, ये कंफर्ट में भी रहेगा। इसलिए ये जो रिस्पॉन्स है LLP के, वो मुझे ऐसे लगता है कि इस कारण वो नहीं। मुझे करेक्ट कीजिए राम सर अगर इफ आई एम इनकरेक्ट। Yes, sir, perfectly. This is a difference between the learned and experienced learned. So I'm happy. It's a perception difference, and it's wider perception I'm getting because I am looking into only one side of the picture. You are looking at all sides of the picture. That's the difference. Correct. Okay, thank you. And, yeah. Now, as far as our the income tax is concerned, राइट, पहले तो एक बात तो थोड़ा सा होगा कि आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे, आपको जनरली कहीं पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड नहीं दिखाई देगा, वो बिकॉज इसका रीजन है सेक्शन 2 क्लॉज 23 सब क्लॉज 1, 2, 3। तो 2 क्लॉज 23 में क्या दिया है, 1 में दिया है फर्म, सब क्लॉज 1 में दिया है फर्म। तो फर्म क्या, फर्म इज द पार्टनर, द फर्म व्हिच इज बीइंग डिफाइंड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 and which includes the limited liability partnership as defined under limited liability partnership act। सेकंड में दिया है 223, सेकंड में दिया है कि व्हाट इज पार्टनर। सो पार्टनर का मीनिंग उसमें दिया है कि पार्टनर इज द पार्टनर व्हिच इज डिफाइंड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इंक्लूड्स द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, राइट, वो उसमें आ गया। 3 में दिया है पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का मीनिंग भी सेम है, पार्टनरशिप मींस as defined in partnership act 1932 and include the LLP which is defined under LLP। तो ये at the inception ही दे दिया है, at the inception ही ये दिया है, इसलिए आपको आगे जहां पे फर्म आएगा वहां पे LLP इंक्लूड है, जहां पे आपका पार्टनरशिप आएगा वहां पे LLP इंक्लूड है, जहां पे पार्टनर आएगा वहां पे LLP का पार्टनर इंक्लूड है। Therefore there is no specific any mention of the LLP in the rest of the act because ये initially clear कर दिया है। Now as far as the partnership form, the provisions for applicable for the partnership form and the LLP is concerned, दोनों में all the provisions are common, सेम जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है वो LLP पे लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट वन प्रोविजन दैट इज सेक्शन 44 AD where it is specifically been excluded, LLP specifically been excluded from this applicability of the section, right। और ये जो पहली डेफिनेशन में क्लियर किया फर्म मींस LLP, इसलिए all the provisions applicable to the partnership firm are applicable to the LLP except as I said where specific exclusion is given for section 44 AD। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे 44 AB का प्रोविजन जो है पार्टनरशिप के लिए जो है वही एप्लीकेबल, ऑडिट के लिए जो है वही LLP के लिए एप्लीकेबल है। 44 AD इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन इज देयर, राइट। देन सेक्शन 47 जैसे सर ने मुझे बोला था, ये 47 सेक्शन सबसेक्शन 13B जहां पे कन्वर्जन दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी into the LLP। If you convert private limited company or the unlisted company into the LLP, then
some benefits are given under Income Tax Act. That is whenever on this conversion private limited company or unlisted company transfers any capital asset, maybe tangible or intangible capital asset, it should not be treated as transfer in the hands of the transferring company, transferor company, right, under the Income Tax Act, but subject to certain conditions. सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, और कंडीशन देख के भी अपने को ध्यान में आएगा कि ये छोटे कंपनीज के लिए दिया है, राइट, स्मॉल कंपनी, वेरी स्मॉल कंपनी के लिए दिया है, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल hereafter will treated as company. So all the assets and liabilities of the company shall be transferred to the LLP. Second condition is that all the shareholders of the company shall become the partner in the LLP, and in the same proportion, whatever is the capital contribution and the share of profit in the LLP, that the proportion should be same as that of shareholding in the company immediately before or on the date of the conversion. Shareholding same होना चाहिए, उनका PSR जो है वो same होना चाहिए, right? Third, पार्टनर, ये जो एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, एग्रीगेट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा एलएलपी में, दैट एग्रीगेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दोज हु वर द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, दे शैल मेंटेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट exceeding 50%. It should not come below 50% after the conversion for 5 years, for the further 5 years from the date of the conversion. एक बार कन्वर्जन होने के बाद अगले 5 साल तक less than 50% उनका एग्रीगेट शेयर होल्डिंग नहीं आना चाहिए, राइट। ये थर्ड वाला कंडीशन। फोर्थ वाला कंडीशन इज दैट कि द पार्टनर शैल नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी अदर फॉर्म other than the capital contribution and the share of profit in the LLP. Right, no other consideration except their capital shall be credited for the capital contribution and the share of profit. No other consideration shall be received. Then last two conditions are important. From that, we can say that it's for the small companies to convert. Fifth condition is that preceding to the year of conversion. Preceding to the year of conversion. Say for example, we have converted in 1920. तो 1920 से पिछले 3 साल 1918, 19, 17, 18, 16, 17 ये 3 साल में the turnover, sales or gross revenues of the company shall not exceed 60 lakhs in any of the last 3 previous years. It shall not exceed 60 lakh in any of the last 3 previous years. So this is एक monetary यहाँ पे लिमिट दिया गया है, तो 60 लाख का है, मतलब इट इज वेरी स्मॉल कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है ये 60 लाख का टर्नओवर पिछले 3 साल में, मतलब इट्स वेरी, हाँ यहाँ पे आप प्लानिंग करके कर सकते हो, आपको प्लानिंग करके आप कर सकते हो यहाँ पे, राइट। प्लानिंग क्या कर सकते हो कि आपको मालूम है आपको कन्वर्जन करना है। अच्छा, कन्वर्जन का बेनिफिट क्या है, वो पहले कंडीशन, लास्ट वाला कंडीशन अपन देख लेते, फिर अपन उसका बेनिफिट देखते हैं क्या है। Then last वाला condition, sixth वाला condition is that कि partner shall not, or rather the LLP shall not distribute any amount as a loan or advance to any of the partners out of the accumulated reserve as on the date of conversion, because private limited company होगा, unlisted company होगा, उनका accumulated reserve होगा, undistributed profit होगा, जो कि otherwise dividend करके माना गया होता, राइट। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रिजर्व है उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, राइट, तो वो प्रॉफिट में से अगले 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन लोन और एडवांस किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी पार्टनर को नहीं देना है। 3 साल के बाद वो आपका फ्री हो जाएगा, 3 साल के बाद फ्री हो जाएगा, राइट। तो मेन जो एडवांटेज है, राइट, ठीक है, आप लाइबिलिटी आपका लिमिटेड का लिमिटेड लाइबिलिटी, यहीं पे लिमिटेड लाइबिलिटी हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक मेन इसमें इंपॉर्टेंट है आपका जो रिजर्व है, जो कि अदरवाइज आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिविडेंड करके माना जाएगा, और फिर डिविडेंड तो अभी शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल हो गया है, राइट। तो उसके छुटकारा आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपको पहले 3 साल थोड़ा प्लानिंग करके आपको ये जो 3 साल में आपका टर्नओवर आपको घटाना पड़ेगा, मतलब आपको किसी दूसरे एंटिटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि वो भी अभी आज के अगर सभी अपन अगर ये तरीके देख लेंगे
इनकम टैक्स की जो प्रोविजन देख लेंगे, अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। वी आर एंड एवरीबडी मस्ट बी फेसिंग कि अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतना रिजर्व है, क्या करेंगे। सेक्शन 222E अभी एप्लीकेबल है, मतलब पहले से एप्लीकेबल है, राइट। और अभी डिविडेंड करके भी नहीं कर सकते। पहले डिविडेंड भी अपन ने 18-20% में दिया होता, लेकिन डिविडेंड तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया है, और वो तो उनके रेगुलर रेट से में भी अगर कोई 43% के टैक्स रेट में होगा तो उसको 43% का टैक्स रेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये तरीके, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन ये हुआ है, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स व्हाटएवर जो एप्लीकेबल प्रोविजंस होंगे वो आपको भरना पड़ेगा यहाँ, राइट। ये हो गया। देन अगर आगे जाके देखेंगे ऑल द प्रोविजन जो है वो, जैसे रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है जो फॉर्म का एप्लीकेबल है वही इसको एप्लीकेबल है। 40B के लिमिट्स जो है, जो इंटरेस्ट एंड सैलरी के जो लिमिट्स है, राइट, इंटरेस्ट एंड सैलरी के लिमिट्स भी सेम एप्लीकेबल है, बिकॉज वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए दिया गया है। तो वी नो दैट इट इंक्लूड्स द LLP आल्सो, राइट। जो इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन के जो आपको लिमिट दिया गया है 40B में, वो सेम लिमिट्स यहाँ पे एप्लीकेबल, राइट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। देन सर ने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था सेक्शन 145 के बारे में, दैट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग बीइंग फॉलोड। सो 145 क्लियर कर देता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि for the purpose of income from business or profession and for income from other sources, right, the SSE has option। अदर में तो ऑप्शन नहीं है अपने को, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में तो अपने को ऑप्शन नहीं है, बट सेक्शन 145 बोलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये जो है हियर यू हैव ऑप्शन टू आइदर कैरी योर कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम एज द केस मे बी। सो यू हैव फ्रीडम टू, देयर इज नो कंपल्शन कि यही करना है, जैसे कंपनी एक्ट में आई थिंक एक्रोल मेथड है, राइट। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, जो मेथड आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो मेथड आपने रेगुलरली फॉलो करना है। There is no restriction on this, but जो फॉलो कर रहे हैं वो रेगुलरली आपने फॉलो करना है, राइट। देन अनदर जो आता है सेक्शन 115 JC, जो कि AMT के बारे में बात करता है, राइट, जो कि AMT के बारे में बात करना है, राइट। AMT के 115 JC बोलता है कि AMT is payable, जैसे सिमिलरली इन केस ऑफ MAT जो है, MAT सबको मालूम है कंपनी का, राइट। तो यहाँ पे AMT के बारे में बात करता है। AMT is applicable for other than company, MAT is applicable for company, AMT is applicable for other than company। उसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि वहां पे दिया गया है AMT is applicable to individual, HUF, AOP, BOI or any other artificial juridical person, right, whose income exceeds 20 lakh rupees during the year, whose income exceeds 20 lakh rupees, right. So if income exceeds 20 lakh rupees, then provisions of AMTs are applicable. Provisions of AMTs are applicable. But here this 20 lakh limit is not applicable for partnership firm and LLP. For partnership firm and LLP, these provisions are not applicable for partnership firm and LLP, right. So here means here irrespective of the income, right, the provisions are applicable, AMT provisions are applicable to the partnership and here AMT provisions are applicable only when the three important deductions are being claimed by the SSE. फर्स्ट इज सेक्शन 10AA का एग्जाम्पशन आप ले रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, आप SEZ में हो, राइट। देन आप सेकेंडली है आपका 80 जो अंडर चैप्टर C जो आता है, राइट, मतलब ऑन द बेस ऑफ इनकम एक्सेप्ट 80P दैट इज एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो 80IA से लेके 80RRB तक जो डिडक्शंस आते हैं ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं आप, एंड सेक्शन 35AD का डिडक्शन। ये तीनों में से अगर कुछ आप क्लेम कर रहे हो तो ही आपको AMT एप्लीकेबल है, अदरवाइज AMT आपको एप्लीकेबल नहीं है। एंड ये जैसे फर्म को एप्लीकेबल है वैसे ही LLP को एप्लीकेबल है। 18.5% आपको ये LLP जो टैक्स है वो देना है एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। इधर कंपनी में बोला जाता है बुक प्रॉफिट, यहाँ पे बोला जाता है एडजस्टेड ग्रॉस। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन भी एकदम सिंपल है, राइट। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द डिडक्शन, उसको ऐड करना है। ये तीनों में से कोई भी डिडक्शन लिया है तो वो ऐड करना है, राइट। जैसे मेरा प्रॉफिट अगर 10 लाख है, मैंने 35AD का 5 लाख रुपए क्लेम किया है, वो ऐड हो जाएगा। 10AA लिया है वो ऐड हो जाएगा, और 80IA से लेके 80RRB तक अगर कोई डिडक्शन लिया है तो वो ऐड हो जाएगा, नहीं। और फिर जो इनकम आएगा, से मेरा इनकम आ गया 30 लाख, 30 के ऊपर मैंने 18.5% से टैक्स निकालना है और अपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालना है।
राइट। ये 18.5 के हिसाब से फॉर एग्जांपल आ गया 4 लाख और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आ गया 3 लाख रुपए। तो विच एवर इज हाइयर ये AMT में देता है, राइट। ये लेकिन जो आपने जैसे ये 3 लाख रुपए आया और ये 4 लाख रुपए आया, AMT 4 लाख रुपए आया, नॉर्मल प्रोविजन 3 लाख रुपए आया, तो इन दिस केस आपका जो 1 लाख है वो क्रेडिट कैरी ओवर हो जाएगा, नहीं ये क्रेडिट कैरी ओवर हो जाएगा और ये क्रेडिट कैरी ओवर होगा 115 JD के अंडर फॉर subsequent 15 assessment years, right? Subsequent 15 assessment years, right? So these are the provision which I can discuss, and here I would like to spend much time on the queries, I would say, right? Because जितना partnership के लिए applicable है उतना ही इसके लिए applicable, as I said 44 AD, right? So मुझे ये बोलना था, but I would be more interested to take the queries. Kiran sir. Yes, sir. All the participants, if any question relating to the LLP, both our speakers are there. They will guide you. Any questions relating to LLP? You can unmute yourself and ask the question. Actually, I am not at my workplace. बाहर आ गया था, वहीं से लेक्चर दे रहा हूँ. राम सर, एक बीच में controversial there was a circular regarding manufacturing activity LLP cannot do, और there was some उसके अंदर में कुछ ऐसा आया था, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सर वो एक्चुअली उनका एक ऑफिशियली एक मेमोरेंडम टाइप निकला था, बट वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है. काफी रिप्रेजेंटेशंस मिले थे उनको, क्योंकि LLP एक्ट में एंटाइटलमेंट ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि द LLP कैन कैरी एनी टाइप ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और द ट्रेड. वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं. तो वो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, वो विड्रॉ कर लिया. नाउ LLP कैन बी फॉर्म और कैन रन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ओके. Sir, one more thing कि as you said कि corporate can be converted into LLP, whether LLP can be converted to proprietary again, कि सब कुछ उसको डिसॉल्व ही करना पड़ेगा और बाद में ही होगा वो? हाँ, प्रोप्राइटरी के लिए तो सर डिसोल्यूशन ही ऑप्शन है, या फिर मतलब प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ होगा वो. पर ऐसे कन्वर्जन उससे मतलब LLP टू प्रोप्राइटर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर एक्ट में. हेलो. Yes, हेलो. एक डाउट ऐसा था कि 44 AD ये जो सेक्शन है जो अपन प्रोफेशनल 50% में इनकम टैक्स भरते हैं, यस सर, इसका उसमें LLP कवर होता है कि नहीं ये अंदर? तो हेलो, मदद के लिए रहते हैं प्रसाद सर, क्या रहते हो वो है वहाँ पे आधी घंटे रिपोर्ट सर. उसमें प्रसाद सर, yes, 44 AD, that is for the what we can say, it is applicable for the specified professionals, right? उसमें LLP आपका कवर नहीं हो जाएगा to the best of my knowledge. सर उसमें लिखा नहीं है, इसके लिए डाउटफुल था सर वो. हाँ, लिखा नहीं, लेकिन देखो कुछ कई केस पे क्या होता है कि if the provision is not clear, the intention of the law we have to take into account, right? So LLP as such cannot be in the professional service. So it is only the exception is being given to the partnership firm, which can be treated as a professional partnership firm, right? So that status, the similar status to the best of my knowledge is not been given to the this LLP. So even if it is not specifically given, then we cannot take it as it is allowed. Sir, then Thank you, sir. Sir, one question relating to that now all the professional bodies can come together and form a firm. In such a case, then how it will be treated? It will not cover 44 AD. नहीं किरण सर समझा नहीं. Sir, now the company secretaries, chartered accountants and architects can also come together and form a body, form a LLP. Multidisciplinary firm. Multidisciplinary firm. सर मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ सर बोलिए. हेलो. एक केस में हमने सर, हेलो, हाँ बोलिए सर. सेम कंसल्टेंसी फर्म थी, उसमें ना हमने एक में वो सेक्शन का बेनिफिट लिया था सर. एक्चुअली मेरे पूना वाले सर थे, उन्होंने बोला हम लड़ेंगे क्योंकि उसमें लिखा नहीं है तो कुछ. एक्चुअली उसका लेना ना लेना सर आप रिस्क पे रहेगा अगर आप लड़ने के लिए रेडी, या तो फिर उसका सेकंड इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि 44 ADA में क्लियरली एक्सक्लूड किया है LLP को क्लियरली. तो आप अगर 44 AD का लेते हो तो 44 ADA भी एक्सक्लूड होता है सर. अगर आप
वाइड अगर आप लॉ का ये इंटरप्रेट करोगे, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मेरा एक ओपिनियन ऐसे आएगा जैसे आपने सर ने एक ओपिनियन दिया, लेकिन उन्होंने क्या ओपिनियन दिया कंफर्म नहीं है, अपन लड़ेंगे, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मे बी वो करेक्ट हो सकते हैं आगे जाके, बिकॉज करेक्ट अपने को मालूम नहीं कि वेदर वी आर करेक्ट और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द जुडिशियरी बॉडी, राइट। बिकॉज एक एग्जांपल आपको सिंपल दे देता हूँ कि मतलब लोग मतलब कितना, ये तो अपन बहुत वैलिड पॉइंट पे अपन ये कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपने इसका केस देखा होगा, अपने प्रशांत भूषण के पिताजी, क्या नाम था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, अपने आपके प्रशांत भूषण है ना, हाँ, उनके शांति भूषण, सॉरी रिमेम्बर, शांति भूषण जी का अगर केस देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग केस आज तक हुआ होगा। उन्होंने उनका हार्ट सर्जरी किया, ही द सुप्रीम कोर्ट लॉयर, उन्होंने हार्ट सर्जरी किया और वो हार्ट सर्जरी का उन्होंने रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट किया खर्चा, राइट, विद द इंटरप्रिटेशन दैट वो ये बोले कि वो मेरा प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी के अंडर आता है, तो मुझे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस उसका मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे उसका डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मुझे उसका खर्चा मिलना चाहिए। तो ये बात सोचो आप कि एओ के सामने, एओ ने तो डिसअलाउ कर दिया, आईटीटी ने डिसअलाउ कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उनको समझाया कि वो आप क्यों उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस या फिर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। पहली बात, एक तो आप डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो उस एसेट का लेंगे जो कि रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। So whether you have recorded your heart in your books of accounts, okay, if at all you record the heart in your books of accounts, what is the value you are going to take, right? Secondly, if you are taking it as a plant and machinery, and it is, he was saying that it is only and exclusively used for my profession, then he said, the Honorable High Court said, what is the meaning of only and exclusively used for business purpose? Say you are in the office, you are using the light. When you are going when you are shutting down your office, you are closing down the office, you are going to switch off your light, you are going to switch off your computer, you are going to switch off your AC. Whether you are switching off your heart when you are coming out of your office, then it is not your plant and machinery. It is not only and exclusively used for your business purpose, it is or profession purpose. It is a very small part of the heart which you are using for your profession. So on this two ground, वो डेप्रिसिएशन जो है या फिर जो उन्होंने खर्चा मांगा था वो डिसअलाउ किया था। तो देखो कहां तक सोच जा सकता है, कहां तक सोच जा सकता है जब डिफरेंस ओपिनियन होता है। Yes, sir. Wonderful experience and wonderful sharing of the case, sir. If any member wants to ask, please unmute yourself and ask your query relating to LLP. राम सर, एलएलपी के अंदर में एजीएम लेनी पड़ेगी? नहीं सर, एलएलपी एक्ट में तो एजीएम का कोई प्रोविजन नहीं है, पर अगर कोई एलएलपी एग्रीमेंट में ऑर्डिनरी मतलब ऐसा कोई एक्टिव पार्टनर और नॉन स्लीपिंग पार्टनर को बाइफरगेट करता है और एलएलपी के मीटिंग की प्रोविजन डालेगा तो ही, अदरवाइज ऐसा कोई नीड नहीं है लॉ में। Okay, sir. One more question relating to LLP. Whether means we are mainly chartered accountants are forming partnership firms. So whether what you would suggest for them, whether you should form an LLP or convert them from partnership to LLP? What is your सर, जैसे प्रसाद सर ने जैसे स्टार्ट किया था कि अगर क्राइटेरिया लाइबिलिटी का अगर नहीं है, जहाँ पे यानी अगर बैंक लोन है तो पर्सनल गारंटीज तो एलएलपी के पार्टनर्स की भी रहेगी, और पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनर्स की पर्सनल गारंटीज रहेंगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एट पार है, पर अगर उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट में रिस्क अगर इन्वॉल्व है तो फिर आप अपन सोच सकते हैं कि एलएलपी गाइड किया जा सकता है। जैसे अगर मान के चलो कोई ऑयल मिल है और उसमें लेडीज एज अ पार्टनर है, और फूड एंड ड्रग का अगर मैटर बनेगा तो लेडीज पे फूड एंड ड्रग का क्रिमिनल मैटर आएगा। अगर ऐसा कोई थ्रेट रिस्क उनके माइंड में है तो गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लेसर रिस्ट्रिक्शन जोन से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जोन में तो जा ही रहे हैं एलएलपी एडवाइस करके। नहीं सर, क्या होता है नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फील्ड में कि देयर इज नाउ अ डिपार्टमेंटल सॉर्ट ऑफ सिनेरियो कि वन पार्टनर इज लुकिंग टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट, द अदर इज लुकिंग टू स्टैट ऑडिट, देन समवन इज लुकिंग बैंक ऑडिट, someone is looking towards direct taxes, फिर indirect taxes. So now the person who is signing the report of statutory audit,
एक्सिस साइनिंग द रिपोर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो एबीसी बोलते हैं कि व्हाई वी शुड बियर द रिस्क, अगर कल कुछ उल्टा सीधा होता है तो, इफ रॉन्ग सिग्नेचर्स गोज या कुछ होता है तो। सो द कांसेप्ट ऑफ एलएलपी आता है क्या इसके अंदर में, फिर इसके अंदर किस तरह होगा? ऐसे अगर समझो मल्टी डिसिप्लिनरी भी है या सेम डिसिप्लिनरी भी है, जहाँ पे पार्टनर्स इतना ज्यादा नंबर है और वो असाइनमेंट में जो असाइनमेंट मैंने टेक ओवर ही नहीं किया, मैनेज नहीं किया, और उसमें अगर पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी आएगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट तो है ही। क्रिमिनल लायबिलिटी की बात आएगी तो जो सिग्नेटरी वो आएगा, पर अगर मॉनेटरी आएगी तो नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो उनको मॉनेटरी लायबिलिटी आएगी। तो कंसिडरिंग दैट सिचुएशन एलएलपी एडवाइजेबल है। तो अगर थोड़ा अभी बिग फोर वगैरह अगर देखेंगे तो शायद दे हैव स्टार्टेड और दे हैव क्रिएटेड द एलएलपीज, डिलॉयट या पीडब्ल्यूसी, दे हैव क्रिएटेड द एलएलपीज एज सच। यस यस। ओके, नॉर्मली क्या होता है सर, हमारे यहाँ पार्टनरशिप इज एक्चुअली ना वेरी नेचुरल पार्टनरशिप्स रहती है, फादर एंड सन और ब्रदर्स की रहती है, वो जो ऑल टुगेदर नेचुरल पार्टनरशिप रहती है। वहां तो सजेस्टेबल है ही नहीं एलएलपी, क्योंकि रिस्क तो घर के अंदर ही रहना है, रिस्क कुछ भी हो जाए तो। When the partnership is not natural, you can say कि LLP is suggestible. Yes, बराबर है। जहाँ पे एज एन कोई इन्वेस्टर आउटसाइडर हो और इन्वेस्टर चाहता है कि भाई मेरा पैसा जो लगा हुआ है उससे ज्यादा मेरा कोई जवाबदारी नहीं आना चाहिए, वहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है। But sir, LLP also offers the tax benefit also, no? Comparing to the partnership firm. नहीं, टैक्स बेनिफिट मेरे हिसाब से टैक्स बेनिफिट सेम है, नो टैक्स बेनिफिट as far as your income tax is concerned. ऐसे कहीं पे भी नहीं कि जहाँ पे एक rather I would say that there is favor to the partnership firm in one section 44AD, Yes. where the favor is not given to ADA. Okay. Otherwise it is that part, and otherwise it is not. Got it. Thank you sir. एक प्रैक्टिकल केस प्रसाद सर को भी मैं शेयर करना चाहता था। जैसे एक हॉस्पिटल था, हम लोगों ने जो उनको प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, तो जो भी डॉक्टर्स थे दे वर द डायरेक्टर्स, और वो लोग क्योंकि प्रोफेशनल कैपेसिटी में उस हॉस्पिटल को सर्व कर रहे थे, तो उनको जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में पेमेंट जो होता था ना, वो डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर बोल के वो क्लेम करते थे। सिमिलर केस में एक एलएलपी बनाए, वही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, तो जब हम पार्टनर्स को जो डॉक्टर्स थे उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो पे कर रहे थे ना, इनकम टैक्स में कुछ डिफिकल्टी आई, तो इज इट राइट दे वर कंसीडरिंग दिस प्रोफेशनल रिसिप्ट एज अ सैलरी टू द पार्टनर्स? इज इट राइट सर? नहीं, आप एलएलपी में से सैलरी दे रहे थे या फिर रेम्यूनरेशन दे रहे थे? हाँ, सैलरी नहीं, प्रोफेशनल रिसिप्ट दे रहा था। डॉक्टर जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा था एलएलपी को, उनको अपन प्रोफेशनल फीस पे कर रहे थे, पर एओ उसको सैलरी और रेम्यूनरेशन में ऐड करके अपर सीलिंग को कनेक्ट कर रहा था। नहीं, सैलरी और इंटरेस्ट तो उसका बिजनेस इनकम ही हो जाएगा ना। नहीं, प्रसाद सर वैसा नहीं है। डॉक्टर है, डॉक्टर एलएलपी में ऑलरेडी पार्टनर है। ओके, he is serving to the hospital, okay, and he is taking his share from that hospital in the form of salary. Okay, in that so that case, that is even though you are giving it name as a salary, it would be remuneration to the partner only, and it is chargeable in the hands of the partner as a business income only. No sir, अगर प्रोफेशनल फीस दी जाती है, फॉर एग्जांपल वन इज एमडी डॉक्टर, अदर इज रेडियोलॉजिस्ट, वो एक रेडियोलॉजिस्ट बोथ आर पार्टनर इन एलएलपी, एक रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखता है, उसको रीड कर दे देता है फॉर एग्जांपल, तो उस केस के अंदर में उसको प्रोफेशनल फीस मिल रही है, तो आपको प्रोफेशनल फीस अलग मिल रही है, सैलरी अलग मिल रही है। नहीं, कुछ देखो, आप अगर सेक्शन 44 ये पढ़ेंगे उनका 40B अगर पढ़ेंगे आप उनका, नहीं 40B में क्या दिया है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ब्रोकरेज, व्हाटएवर आपको मिल रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ भी होने दो, ऐसे कभी नहीं होगा कि आप उनको सैलरी एक अलग दे रहे हो और वो 40B में नहीं आएगा, और 40B के लिए लिमिट अलग है। वहां पे दिया गया है सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, कुछ भी दे दो, अंडर आगे लिखा है एनीथिंग बाय अदरवाइज नेम, आप उसको नाम कुछ भी दे दो। आप उनको देखो, आप जो वो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए लिया है वो काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप दे रहे हो। अंडर इनकम टैक्स इट इज वेरी मच क्लियर कि आप उनको जो भी नाम से दे रहे हैं वो उनका बिजनेस इनकम माना जाएगा, उनके सैलरी के अंडर नहीं। It is under professional capacity only, and that will be chargeable as income from business and profession only. Okay. I think all the questions of the participants are been solved. If any question?
Now I request Vipul Patel sir to give the vote of thanks for the today's session, sir. Thank you for giving this honor, sir. On the behalf of all the three branches, now I think these AAA words have become synonymous with the speaker also who are coming on this platform. So it feels very good, sir. It shows the bonding and unity between the branches. And this pandemic situation has given us opportunity to interact more than often. So today's, I think, the topic on LLP as very well deliberated by both the speakers. CS Ram Thakkar sir from Akola, who is always a troubleshooter as far as the member of Akola and Amravati is concerned. But we are very glad and fortunate that we are got the opportunity to listen to the Prasad sir for the very first time. उन्होंने सर जो सिंपल तरीके से काफी जो इनकम टैक्स के प्रोविजन हमारे सामने रखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो मेंबर्स के काफी सारे डाउट्स थे आज वो क्लियर हुए. काफी अच्छा लगा सर सुनने को, आज आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए. और एज फार एज द राम ठक्कर सर's deliberation is concerned, sir, you very well highlighted the various provisions starting from the formation of LLP, various benefits to the LLP over the partnership firm and private limited company, rules related with the maintenance of books of account, and various compliances as far as the ROC and IT department is concerned. You also highlighted the very key differences between the companies vis-a-vis a partnership and private limited company. So on the behalf of all the three branches, thank you very much to both our learned speaker, CS Ram Thakkar sir and Prasad Bhandari sir. And last but not the least, to all the viewers for joining us today. Thank you very much.